Everyone. At the outset, I just wish to extend my heartfelt gratitude towards Dr. Priti Dharmik ma'am and entire team of NHRDC for giving me an opportunity to interact with you all. So for next 3 hours or so, we'll be having discussions on the topic as you can read on the screen, tips to create amazingly professional PowerPoint presentations. I like to use a combination of two languages, Hindi and English, because comprehension is more important. This is what I believe. PowerPoint presentations we all have been creating. We all are academicians, and there are several opportunities wherein we typically prepare PowerPoint presentations and we at the same time present our PPTs. In our daily routine lectures or classroom regular classes, even many of us must be using PowerPoint presentations. And if we talk about some special opportunities, like many times NAC committees visit our campuses for accreditation purposes, and in that particular sense as well, we are supposed to create PowerPoint presentations and we're supposed to present a department to the committees. At the same time, many of us must be following doctoral program. It's a PhD program. And while pursuing PhD, there are several platforms wherein we are supposed to prepare PowerPoint presentations and present it. Like for appearing your synopsis viva in front of RRC, we're supposed to create PowerPoint presentations and we're supposed to present it. Then during progress seminars and then pre-submission viva and the final PhD viva, all these are several platforms कि हम लोग PowerPoint presentation तैयार करते हैं और present भी करते हैं. Many of us must be presenting articles in several conferences as well. Many of us must be working as resource persons, and we have been delivering guest lecture sessions at several institutions. So बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है हम लोगों को कि हम लोग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं. और इम्पोर्टेंटली जब अभी आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम भी ऑनलाइन फॉर्म में ही हो रहा है, एंड द लास्ट 2 or 3 years specifically after the outbreak of corona, we all have acquainted ourselves with this online or digital platform. और वहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट करना इट इज इटसेल्फ अ चैलेंज, एंड एंगेजिंग योर ऑडियंस इज ऑल द मोर डिफिकल्ट यू कैन से. तो यहाँ पे भी हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में भी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं. तो विद दिस बैकड्रॉप, what I feel you all know how to create PowerPoint presentations, and you must be creating all these PowerPoint presentations. और हम ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं, नथिंग न्यू अबाउट इट. और आप यही सोच रहे होंगे कि सर इसमें पढ़ाने वाली क्या बात है कि PowerPoint presentations तैयार कैसे करते हैं, हम लोग तो रोज ही तैयार करते हैं. नो डाउट अबाउट दैट, वी ऑल हैव बीन क्रिएटिंग PowerPoint presentations. मेरा आज का जो फोकस रहेगा ये टेक्निकलिटीज पे नहीं है. देखिए, हम लोगों ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे तैयार करते हैं ये शायद फॉर्मल ट्रेनिंग लेके सीखा नहीं है, पर वन फाइन डे कहीं पे तो भी आके काम रुक गया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना और प्रेजेंट करना कंपलसरी हो गया. और उस वक्त फिर हम लोगों ने किसी की हेल्प लेके पीपीटीज कैसे तैयार करते हैं वो सीख लिया. इट वाज मोर सॉर्ट ऑफ ए कंपल्शन एंड नाउ इट हैज बिकम अ हैबिट. और ये हमारे एकेडमिक करियर का एक इंडिस्पेंसेबल सा पार्ट भी बन गया है. रूटीन बेसिस पे हम लोग पीपीटीज तैयार कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, नथिंग न्यू अबाउट इट. और मैं वो आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, वो तो ऑफ कोर्स आप सबको आता भी है वो कि ओपन कैसे करते हैं पावर पॉइंट का पैकेज और टाइप कैसे करते हैं. ये सब हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं. हम लोग आज बात करेंगे कि उसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में हम जान कैसे फूंक सकते हैं, उनको ही हम प्रोफेशनल टचेस कैसे दे सकते हैं, उनको हम ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा एंगेजिंग कैसे कर सकते हैं. उसको लेके मैं कुछ गाइडलाइंस देने की कोशिश करूंगा जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे. ये एक ऐसा डोमेन है जिसके ऊपर ट्रेनिंग ली जा सकती है, और बहुत बार हम लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारे करियर से रिलेटेड. देखिए, हम लोग जो कोई भी सब्जेक्ट क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी हमारा एक कोर डोमेन बन चुका है,
उसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट नॉलेज डेवलप करने में बहुत सारी मेहनत की है और हमारे पॉपन प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स कितने बेहतर हो उसके ऊपर हम लोग काम तो करते ही आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। पर उसी चीज को जब प्रेजेंट करने की बारी आती है, जब पावरपॉइंट की स्लाइड्स में वो चीज लिखने की बारी आती है, तो शायद हम लोगों को उसको लेके इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं मालूम, या फिर उसको लेके कुछ एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन है सेपरेट, ये शायद हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और इसको लेके अवेयरनेस भी थोड़ा कम है। पर एक बात तो तय है, हम सब लोग एकेडमिशियंस है और हम सब एकेडमिशियंस के लिए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हो जाती है। देखिए, कोर स्किल सब लोग डेवलप कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। कंपटीशन कहाँ पे आती है? जब ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है या सप्लीमेंट्री हो जाती है रादर। देखिए, आपके ही सब्जेक्ट के दूसरे कोई प्रोफेसर्स आपके जितना ही नॉलेज है, तो फिर दोनों में स्टैंड आउट कौन होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन? तो ऑब्वियसली जिसके विजुअल प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर होंगे, उसके प्रेजेंटेशन का इफेक्ट शायद एवरलास्टिंग रह सकता है। और यही चीज शायद आज हम हमारे सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस बिग ब्रीफ बैकड्रॉप, नाउ आई एम गेटिंग इनटू माय कोर डिस्कशंस। हम लोग आईसीटी का वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं और आपको ही मालूम है आईसीटी इज क्वाइट कॉम्प्रहेंसिव, और उसमें ब्लेंडेड लर्निंग एक डोमेन है आईसीटी में, और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग का एक पार्ट है। यानी आईसीटी में इसका राइट अवे मेंशन है कि आप जो भी कंटेंट्स डेवलप करते हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंटेशंस, तो आईसीटी में वो पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट भी किया गया है कि वॉट एवर कंटेंट यू हैव बीन डेवलपिंग, हाउ आर यू प्रेजेंटिंग दोज पर्टिकुलर contents, and how you have been reporting those particular contents to your target audience, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आईसीटी यू कैन से। और इसमें आईसीटी में ब्लेंडेड लर्निंग में ये कहा गया है कि यू आर सपोज टू इम्प्रूव द क्वालिटी थ्रू ब्लेंडेड लर्निंग। और ये जो पार्ट है उसमें पावर पॉइंट का उल्लेख स्पष्ट दिखता है, और मैंने पूरा करिकुलम देखा है आईसीटी का, और उसमें पावर पॉइंट को लेके स्पष्ट उल्लेख दिखता है। तो शायद यही एक छोटी सी चीज है, मैं आज के 3 घंटे में इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि how can we achieve quality through our PowerPoint presentations. So I'm starting my deliberations with a caption, as you can read on the screen. People don't pay attention to boring things. Of course ये हमारे साथ भी तो लागू होता है ना, कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो बोरिंग चीजें देखना पसंद करेगा। इट्स क्वाइट इनहेरेंट और क्वाइट नेचुरल यू कैन से। और यही चीज मुझे लगता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ भी होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी तो दो कैटेगरीज हो सकती है, एक बोरिंग प्रेजेंटेशन और एक एक्साइटिंग या एंगेजिंग प्रेजेंटेशंस। मैं अगर आपको पूछता हो कि इन सपोज आपको दो चॉइसेस दिए गए कि आप जहाँ कहीं भी लेक्चर्स डिलीवर करने वाले हो, या इन सपोज आपके कोई स्पेशल लेक्चर्स है, गेस्ट लेक्चर्स वगैरह आप दे रहे हो, तो उस सेंस में अगर आपको दो चॉइसेस दी गई कि आप एक रूटीन या बोरिंग प्रेजेंटेशन तैयार करिए, एक्साइटिंग, तो ऑफ कोर्स आप किसके साथ जाओगे? तो नो डाउट हम लोग एंगेजिंग प्रेजेंटेशंस के साथ जाना पसंद करेंगे। तो ये एनालॉजी मुझे थोड़ी सी बेटर लगती है कि हम लोग प्रेजेंटेशन तैयारी कर रहे हैं, तैयार तो कर ही रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। तो मुझे लगता है अगर विजुअल्स पे भी हम लोग थोड़ा काम कर ले, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसका जो इफेक्ट आने वाला है, जिसको हम फीडबैक कह सकते हैं शायद, वो बेटर आने के चांसेस है, और आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाउ टू अचीव दिस, वी आर ऑन टू इट। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा। आज 2 सेशंस में ले रहा हूँ, पहले 1.5 घंटा और बाद में फिर से 1.5 घंटे में बात करेंगे हम लोग इसी चीज के ऊपर। रादर मुझे 3 घंटे भी कम पड़ते हैं सब एक्सप्लेन करने के लिए, बट स्टिल आई ट्राई टू मैनेज द थिंग्स इन 3 long hours. So this is the core objective in mind. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू लर्न टू क्रिएट इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, कि हम लोग एंगेजिंग प्रेजेंटेशंस या प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस कैसे तैयार करते हैं, या फिर प्रोफेशनल स्लाइड्स और ऑर्डिनरी स्लाइड्स में फर्क क्या होता है, और प्रोफेशनल स्लाइड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, वो बात करेंगे। देखिए, आज के सेशन में मैं आपको कंप्यूटर को तो मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो आज कोई फंक्शंस नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं तो आपको सिंपल एक छोटी मोटी ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जिससे आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बेटर लगना शुरू हो जाएगा। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोगों को सिर्फ इंसाइट्स डेवलप करने हैं। एक अक्यूमेन जिसको कहते हैं ना, किसी चीज को देखने का नजरिया,
वो शायद हम लोग आने वाले 3 घंटे में डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और मुझे तो लगता है एक बेटर तरीका ये भी है कि आज की मेरी स्लाइड्स जो है वो भी थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कर लेंगे ना, तो शायद पता चल जाएगा आपको कि ऑर्डिनरी स्लाइड्स और थोड़ी बेटर स्लाइड्स में क्या फर्क हो सकता है। सो थ्रू ऑब्जर्वेशन इवन यू कैन लर्न, आई बिलीव। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के यूसेज को लेके इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल का मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट टू स्टार्ट माय डेलिब्रेशंस विद। ये 2012 में आईबीएम ने कुछ आंकड़े डिस्क्लोज किए थे, और आईबीएम ने जो रिपोर्ट किया था उनके मुताबिक 2012 के आंकड़े ये हैं कि दुनिया में लगभग 500 मिलियन लोग they have been using PowerPoint presentations for creating their PowerPoint slides or presentation slides, you can say। 500 मिलियन यानी हमारी भाषा में लगभग 50 करोड़ ये आंकड़ा हो जाता है, और ये 2012 का आंकड़ा है। और एक मैं एडिशन देना चाहता हूँ कि ये आंकड़ा लाइसेंस वर्जन का है, कि जितने लाइसेंसेस एमएस ऑफिस के बेचे गए हैं उसका ये आंकड़ा है। तो आप ये आंकड़े हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है ऐसा मुझे लगता है। आप अपने आजू बाजू में देख लो कि आप अगर किसी से बात करते हो कि आप प्रेजेंटेशन कौन से सॉफ्टवेयर में तैयार कर रहे हो, तो स्वाभाविक है कि एक आंसर आएगा कि इसका क्या मतलब है, दूसरे कोई पैकेजेस भी होते हैं क्या? दो देयर आर सेवरल पैकेजेस, कि आपका कैनवा और बहुत सारे पैकेजेस हैं, पर वो हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। उसका कारण भी शायद एक है कि हम लोगों को उसका अवेयरनेस नहीं है कि ये पैकेजेस कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस। और दूसरी बात कि उसको ना थोड़ा सा डील करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली पैकेज माना जाता है, और इसलिए तो हमने बिना ट्रेनिंग लिए भी तो आज पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बना पा रहे हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। और यही एक कारण है कि इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट यूबिक्विटसली यूज्ड टूल्स अक्रॉस द ग्लोब। सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाने वाला पैकेज एमएस पावर पॉइंट। थोड़े आंकड़े आगे लेके जाते हैं। अभी बात करते हैं प्रेजेंटेशंस की। 30 मिलियन प्रेजेंटेशंस आर गिवन इन डे, ये भी आंकड़े पुराने हैं। और आप देख सकते हैं अभी ऑनलाइन में जब हम लोग सब आ गए हैं, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग हो रहा है, तो ये आंकड़े मुझे लगता है कम से कम 4 गुना आपने मल्टीप्लाई कर देने चाहिए। 2012 का आंकड़ा है 30 मिलियन, यानी 3 करोड़ प्रेजेंटेशंस दुनिया में एक दिन में दिए जाते हैं। और मुझे तो लगता है 10 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा चला गया होगा। इतनी ज्यादा तादाद में एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पैकेज यूज हो रहा है। इसको अगर फिल्टर डाउन करते हैं हम लोग पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड में, तो ये भी आंकड़े पुराने हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर एक सेकंड में 350 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं दुनिया भर में। यानी मैं अभी इस मोमेंट पे आपके साथ की डिस्कशन कर रहा हूँ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू, और मेरे ही साथ अभी इसी पर्टिकुलर सेकंड पे दुनिया भर में मालूम नहीं कितने सारे लोग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस कर रहे होंगे, और आप जैसे कितने सारे लोग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। यानी क्या इतनी ज्यादा तादाद में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट किए जाते हैं और सुने और देखे भी जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ये है, अभी आपको फील तो आ गया है कि कितना यूबिक्विटस और कितना ज्यादा हाईली यूज्ड टूल है माइक्रोसॉफ्ट का पावरपॉइंट। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 90% ऑफ ऑल दिस प्रेजेंटेशंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अनबेयरेबल प्रेजेंटेशंस, या बोरिंग या फिर इनसिपिड प्रेजेंटेशंस। 100 में से हर 90 प्रेजेंटेशंस जो ऑडियंस है उनका कहना है कि वो बोरिंग से लगते हैं। आप अपना खुद का केस ले लीजिए, आप भी दिन भर में कितने प्रेजेंटेशन बनाते हो और कितने प्रेजेंटेशन हम सुनते हैं, पर कितने प्रेजेंटेशंस के साथ हम रियली कनेक्ट हो पाते हैं। 3 घंटे का सेशन अटेंड करना, वो भी हर एक मैसेज उसमें से ग्रास्प कर लेना, इट इज इटसेल्फ अ बिग चैलेंज, एंड दैट टू ऑन ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बॉस। मीन्स आपके प्रेजेंटेशंस जो है वो एंगेजिंग अगर हो जाते हैं तो ही वो प्रेजेंटेशंस इफेक्टिव कहलाएंगे। पर हो क्या रहा है रियल लाइफ में, 90% प्रेजेंटेशंस दे आर इंसिपिड, इंसिपिड मंडेन यू कैन से, यानी जिसमें कोई जान नहीं है, लाइवलीनेस नहीं है। ये एक थ्योरी कहती है। दूसरी एक थ्योरी तो मैंने हाल ही में पढ़ी थी, उसमें ये कहा कि 99% प्रेजेंटेशंस आर अनबेयरेबल, यू कांट बेयर विद 99। हर 10 में से, और रादर हर 100 में से 99 प्रेजेंटेशंस आप कह रहे हैं कि यार बोरिंग था प्रेजेंटेशन, मजा नहीं आया सुनने में। This is what are the reactions of the audience, those who have been attending presentations. So of course यही पे तो मुझे लगता है एक स्कोप है हम लोगों को, क्योंकि हम सब एकेडमिशियंस हैं, हम लोग भी तो प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, और हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा फीडबैक अच्छा है। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको अगर एप्रिसिएशन मिल जाता है,
एक प्लेजर मिलता है जिसको हम टीचिंग प्लेजर कहते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा ना कि कोई एक लेक्चर एंगेज करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले पता चल जाता है कि हमारा फीडबैक अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि अंदर से वाइब्स आती है और वो जो वाइब्स है ना, अनएक्सप्लेनेबल, यानी आप वो जो फीलिंग है ना, एज ए टीचर मुझे लगता है वो एक पिनैकल है हमारे टीचिंग लर्निंग जर्नी का, रादर हमारे एकेडमिक करियर का। सबसे बड़ा सुकून मिलता है कि जब हम अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, अच्छे लेक्चर देते हैं और ऑडियंस भी आपका उसको अप्रिशिएट करता है। सो ऑफ कोर्स वी शुड स्ट्राइव फॉर दैट पर्टिकुलर, टू अचीव दैट पर्टिकुलर फीलिंग। तो बात ये होती है कि कारण क्या है इसका, कि अगर हम बोल रहे हैं कि 90% और एक थ्योरी करी कि 99% प्रेजेंटेशंस बोरिंग है, तो ये बोरिंग होने का कारण क्या है? मैं 2 स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। टेक अ लुक एट दिस स्लाइड। ये स्लाइड अगर देखते हैं तो इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और शायद हम लोग ऐसे ही स्लाइड दिन भर में मालूम नहीं कितनी सारी देखते हैं और एज ए प्रेजेंटर हम लोग तैयार भी करते होंगे। ऐसे स्लाइड्स में ना जान नहीं है, और आपका ऑडियंस भी इसको ना बहुत ज्यादा कॉग्निजेंस नहीं लेता है ऐसे स्लाइड्स का उसको, क्योंकि इसमें कुछ एक्साइटिंग लग ही नहीं रहा है। ऐसे स्लाइड्स तो रूटीन कोर्स ऑफ टाइम में मालूम नहीं कितनी सारे हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस देख रही है, और हम भी रादर इसी तरीके से कुछ स्लाइड्स बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्लाइड अगर इस तरीके से है, जो मेसी लग रही है, थोड़ी-सी डिसऑर्गनाइज्ड लग रही है, या फिर इसमें कोई एक्स फैक्टर नहीं है। इसमें कोई वाव फैक्टर जिसको हम कहते हैं ना, वो वाव फैक्टर इज मिसिंग ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्लाइड और द स्लाइड सिमिलर टू दिस वन कैन fall under the category of boring or insipid, अनदर वन। और ऐसे मालूम नहीं अनगिनत स्लाइड्स हम रोज देखते हैं और शायद बनाते भी हैं, और हम लोगों पे भी एज ए पार्टिसिपेंट बम्बार्डिंग भी शायद ऐसी किसी स्लाइड्स की होती है, और इसीलिए हम लोगों को शायद प्रेजेंटेशंस याद नहीं रहते हैं। ये भी एक रियल लाइफ केस है। महाराष्ट्र का ही कोई एक कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट लेवल की एक कॉम्पिटिशन हुई थी, जिसमें अवार्ड देना था बेस्ट पॉवर प्रेजेंटेशन का। और आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है, ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला था। मुझे इसमें कुछ एक्साइटिंग लगता नहीं है, पर ये बेस्ट है तो फिर हम इमेजिन कर सकते हैं कि वर्स्ट क्या होगा। इसको बेस्ट का अवार्ड मिला था, दिस वाज द टॉप मोस्ट, यू कैन द बेस्ट प्रेजेंटेशन। अगर ये बेस्ट है तो यू कैन सिंपली इमेजिन कि बाकी प्रेजेंटर्स ने फिर क्या तैयार किया होगा। सो दिस शुड नॉट हैपन विद अस एट लीस्ट। देखिए, इंडिया में रियल साइंस में कंप्यूटर रियल साइंस में 1993 में पेनिट्रेट हुआ। पेनिट्रेशन का मतलब है कि एक आम आदमी ने देखा होगा या परचेस किया होगा, तो वो आते आते 1993 आ गया था। तो 1993 में कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से दिखते थे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे। और एक्चुअली हमने जो जिंदगी में पहली बार देखा होगा, ये ब्लैक कलर का कैबिनेट शायद हमने देखा होगा, और ये जो सीपीयू जिसको हम कहते हैं, ये भी बड़ा बल्कि रहा करता था। आपके कीबोर्ड बड़े स्टर्डी, ड्यूरेबल, इसमें कनेक्टिंग कॉर्ड्स और एवरीथिंग इज सो ड्यूरेबल एंड वॉल्यूमिनस, यू कैन से हेवी वेट, एवरीथिंग। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे इसका जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले था, इट वाज ब्लैक एंड व्हाइट। अभी बात करते हैं हम लोग 2021-2022 की। आप देखेंगे ये कंप्यूटर जो है ये अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। रादर आज की डेट में डेस्कटॉप देखने को मिलना ही इट इज इटसेल्फ ए अचीवमेंट, यू कैन से। पर जो भी डेस्कटॉप आज की डेट में बाजार में मिल रहे हैं या फिर कहीं ऑफिसेस में देखने को मिलते हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। ये स्लिकी है, इसका वेट बहुत कम हुआ है, इस ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं, देखने में भी एलिगेंट लग रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें वायरलेस चीजें आ चुकी है, वायरलेस कीबोर्ड है, वायरलेस आपका माउस है। इंपॉर्टेंट बात, इसका डिस्प्ले जो है ये भी कलरफुल हो चुका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज यूज करके हम लोग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, वो चीज तो अच्छी खासी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, रिवॉल्यूशंस आए हैं इसमें, और मैं तो कह रहा हूँ मालूम नहीं कितने सारे अपडेशंस इसमें हुए हैं। 1993 से लेकर 2022 तक कितने सारे अपडेटेड फीचर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐड हुए होंगे उसमें। पर एक चीज मुझे शायद 1993 से 2022 में नहीं बदली है, वो है शायद प्रेजेंटेशन का तरीका। 1993 में प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स ऐसी दिखती थी, 2021-22 में आपके पावरपॉइंट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड ऐसी दिख रही है, और आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है।
तो जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें अच्छे खासे फीचर्स ऐड हो चुके हैं, पर तरीका जो है, ये प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका, ये अभी भी नहीं बदला है। और मुझे लगता है कि आपकी स्लाइड्स इफेक्टिव कब होगी, जब हम हमारा तरीका चेंज करेंगे। द वे वी हैव बीन क्रिएटिंग आवर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस, इफ वी ट्रांसफॉर्म दैट वे और द मेथड और द प्रोसीजर वी फॉलो, तो मुझे लगता है हमारे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में जान आ जाएगी, और आपके प्रेजेंटेशन थोड़े से लाइवलीनेस या फिर इफेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंगेजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ स्लाइड्स मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं एक 7 से 8 स्लाइड्स अभी एक के बाद एक अनफोल्ड कर रहा हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये स्लाइड मैंने खुद खुद तैयार की है, और ये बनाने के लिए मुझे हार्डली 1 या डेढ़ मिनट के ऊपर तो नहीं लगा है। और ये मैंने पावर पॉइंट का ही 2010 का जो वर्जन है एमएस ऑफिस का, वो यूज करके बनाई है। इसका मतलब साफ है कि पावर पॉइंट का जो पैकेज है एमएस ऑफिस का, जो आप यूज कर रहे हो और सब लोग यूज करते हैं, वर्जन कोई भी हो, 2010 के बाद के कोई भी वर्जन आप यूज करिए, मैं 2007 का तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। 2010, 13, 16, 19, इसमें से कोई भी वर्जन आप यूज करिए, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं जो शायद हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि एमएस ऑफिस में जितने भी फीचर्स है उसमें से शायद हम 3 से 5% ही यूज कर पा रहे हैं। और यही एक कारण मुझे लगता है कि इतने सारे फीचर्स होने के बाद हम अगर उसको यूज नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स हमारे प्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी कैटेगरी में जाएंगे। और ये एक ऐसा फीचर है, ये सिर्फ इंसर्ट का एक फंक्शन मैंने यूज किया, इंसर्ट पिक्चर का, वर्ड में। वर्ड आर्ट नाम से एक फंक्शन है, वो वर्ड आर्ट में मैंने ट्रैवल टाइप कर लिया और इंसर्ट पिक्चर, ये फंक्शन यूज करके मैंने इंसर्ट कर दिया। तो हार्डली अभी हाथ तो इतना बैठ चुका है कि आप मुझे अभी भी बोलेंगे कि ये स्लाइड बना के दिखाए तो शायद मेरा 30 सेकंड में ये बन भी जाएगा, इतना इजी है। पर ये स्लाइड का इफेक्टिवनेस आप देखेंगे, कुछ और आप देखिए एग्जाम्पल्स, ये बिलीव नहीं करता है आपका ऑडियंस कि आपने ये एमएस ऑफिस में बनाया होगा। ऐसा लगता है कि हमने बहुत ही एडवांस कोई स्टैटिस्टिकल, सॉरी, अपने प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर्स यूज किए होंगे। पर बिलीव मी, ये 30 सेकंड में हम लोग अचीव, वी कैन अचीव दिस पर्टिकुलर इफेक्ट only through PowerPoint presentations, you can say. The packages, those we have been consistently using over a period of time. As you can see, all these slides I have created only in just 30 seconds or so. So this magic we can create by using PowerPoint presentation package in a very smart way, you can say. तो मुझे क्या लग रहा है, PowerPoint प्रेजेंटेशन इफेक्टिव अगर बनाने हैं आपको, तो मुझे लगता है एक तरीका भी हम लोगों ने चेंज कर लेना चाहिए। अभी ये अचीव कैसे करते हैं हम लोग वो डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, आपके स्लाइड पे अभी जो, आपकी स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। आई एम जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड एन एनालॉजी। क्योंकि जब भी हम लोगों को लेक्चर्स तैयार करने होते हैं, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है, आप अपना खुद का केस ले लीजिए। प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो हम सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ पे करते हैं? ऑफकोर्स कंटेंट पे। और मैं जरा भी नहीं बोलूंगा कि ये गलत चीज है, बिल्कुल। कंटेंट तो जान है ना। आपका प्रेजेंटेशन बहुत चकाचक है, अच्छा दिख रहा है, पर उसमें कंटेंट ही नहीं है, तो ऑफकोर्स आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कहलाएगा। हम लोग मेहनत जो कर रहे हैं कंटेंट पे कर रहे हैं। हम लोग एक छोटा सा आधे घंटे का भी प्रेजेंटेशन करना है तो हम उसमें कम से कम 3, 4, 5 दिन काम करते हैं, उसमें कंटेंट पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। इंटरनेट की बहुत सारी साइट्स हम लोग देखते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंटर्स हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, और किताबें पढ़ते हैं। मेहनत हो रही है हमारी, मेहनत हो रही है कंटेंट पे। मैं क्या बात कर रहा हूँ, कंटेंट के अलावा अगर आप विजुअल्स पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हो ना, तो वो कंटेंट की लज्जत जो है वो बढ़ जाती है। देखिए, खाना बनाने के लिए हम लोग जो मेहनत करते हैं, कोई डिश तैयार करने के लिए जितनी मेहनत करते हैं ना, आखिरी के 2 मिनट अगर आप गार्निशिंग पे भी थोड़ी मेहनत कर लो ना, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, गार्निशिंग अगर बहुत ही लैविश रही ना, तो ऑफकोर्स खाने की लज्जत बढ़ जाती है, टेम्पटिंग हो जाता है वही फूड। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कंटेंट के साथ साथ थोड़ा विजुअल्स पे काम कर लोगे ना आप, तो आपके प्रेजेंटेशन में जान आ जाएगी, आपके प्रेजेंटेशन मेमोरेबल हो जाएंगे, आपके ऑडियंस विल स्टार्ट appreciating your presentations, and this is one of the ways to create effective presentations, you can say. चलिए, ये मेरा एक सवाल है आप सबको कि आपने जब से समझ आई है तब से अभी तक आपने कितने सारे प्रेजेंटेशंस एज ए पार्टिसिपेंट अटेंड किए होंगे? ये आंकड़ा मुझे नहीं लगता 1000 के नीचे होगा, हजारों में ये आंकड़ा होगा। कितने सारे प्रेजेंटेशंस हमने अटेंड किए हैं एज ए पार्टिसिपेंट, या फिर किसी न किसी भाषण में हमने
एज ए पार्टिसिपेंट बैठ के प्रेजेंटेशंस देखे। मेरा सवाल ये है कि इतने सारे आप हजारों प्रेजेंटेशंस अटेंड कर रहे हो, उसमें से कितने प्रेजेंटेशंस हम लोगों को याद है? याद करने की कोशिश करिए, मैं बोल रहा हूँ इसलिए याद करने की कोशिश करिए। और आपको अगर सही में दिक्कत हो रही है याद करने में, तो समझ जाइए हमने जो भी देखा है, सुना है, वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं रहा होगा। हाँ, शायद कंटेंट्स याद आ रहे होंगे, पर कोई पावर पॉइंट की स्लाइड्स आपको याद आ रही है कि यार दिस वाज द स्लाइड, आई कुड स्टिल रिमेंबर एंड आई कुड स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोस पर्टिकुलर स्लाइड्स। ये रेयरली याद आती है। अगर आपको एक या दो याद आ रही होगी, तो टेक इट फ्रॉम मी, दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड एज इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, एंड वी शुड स्ट्राइव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर फ्लो। जो आपको याद आ रहा होगा ना, जिस आदमी के आपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स आपको आंखों के सामने सभी फ्लैशबैक के फॉर्म में जा रही होगी ना, मुझे लगता है वो आदमी आपका रोल मॉडल है। उसके जैसे स्लाइड्स अगर बनाने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप भी वो इफेक्ट अचीव कर पाओगे। पर ये ना बहुत ही आइसोलेटेड केसेस में होता है कि हम लोगों को जो स्लाइड्स है वो इतनी ज्यादा याद नहीं रहती है, कंटेंट शायद इक्का दुक्का याद होंगे। पर मुझे क्या लगता है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस आर दोज प्रेजेंटेशंस व्हिच हैव स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू। आपके प्रेजेंटेशंस अगर मेमोरेबल हैं, आपकी ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशंस अगर याद रख पा रही है, तो आपके प्रेजेंटेशंस को इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस कहा जाता है। पब्लिक स्पीकिंग में एक थ्योरी ये कहती है कि इफ योर प्रेजेंटेशन इज लिंगरिंग ऑन द माइंड्स ऑफ योर ऑडियंस फॉर 72 आवर्स, then your presentation is considered as the effective presentation. 72 hours is equivalent to 3 days. आप कोई प्रेजेंटेशन अटेंड करते हो और वो प्रेजेंटेशन 3 दिन तक आपके माइंड में लिंगर करता है, तो समझ जाइए आपने कुछ अच्छा सुना है, मीनिंगफुल सुना है, जिसको आपने एफर्ट नहीं लिए है याद रखने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में लिंगर हो रहा है। एंड वी शुड ट्राई टू अचीव फॉर दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। And if we could achieve that particular effect, then our presentation can be considered as an effective presentation. And visuals का अपना एक इम्पोर्टेंस है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आदमी को ना शब्द बहुत कम याद रहते हैं, पर विजुअल्स ज्यादा देर तक याद रहते हैं। दैट इज द इम्पैक्ट। 72% of the times you remember only visuals, and only for 28% time it happens that it is one of the theories ना। बहुत सारा पढ़ा है मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे, और ये सब जो स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ मैं, वो बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उसमें से ही कहीं से ये आया है। 72% जो आपके प्रेजेंटेशन का इफेक्ट है, इट इट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू विजुअल्स, टेक इट फ्रॉम मी। एंड ओनली इट इज थ्रू 28% यू कैन अचीव इफेक्टिव, what we can say, achieve great feedback only through your words. And that is the importance of presentation tool while making any of the presentations, you can say. And of course, the message is loud and clear. If we could start working on making great visuals, which are related with the topic under consideration, so of course, your presentation will become memorable presentations and effective presentations. Hereafter, I'm going to render 13 tips to improve the quality of your presentation and how to achieve that particular effect, कि आपकी ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशन को याद रखे, एंड योर प्रेजेंटेशन स्लाइड वुड बी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल स्लाइड्स. So how to achieve this? We are on to it, and now one by one I am going to unfold 13 guidelines, and for next 2.5 hours I'll be discussing only this 13 guidelines. You can keep your papers and pens ready, because you are going to write only 13 tips, that too only 13 lines, and I am going to discuss on the 13 lines for next 2.5 hours. So we're on to first tip now. Before getting into that, another analogy. Why I am pressing upon the presentation part. देखिए, मैगी हर घर में बनती है, और शायद मैगी का लुक ऐसा आता है और मैं कह रहा हूँ कि मैगी बना ही रहे हो ना, मैगी ऐसी बनाइए। रॉ मटेरियल सब लोग एक ही यूज कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ वही रॉ मटेरियल यूज करके ये चीज भी बनती है और ये चीज भी बनती है। तो टेम्पटिंग कौन सी लग रही है? मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर लग रही है और रूटीन जो है वो कुछ ऐसी दिखती है मैगी। और मैं यही कह रहा हूँ कि रूटीन प्रेजेंटेशन और आपके जो स्लिकी प्रेजेंटेशन या प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में अगर आप मुझे डिफरेंस पूछेंगे ना, तो ये मैगी वाला डिफरेंस है बॉस। एंड पीपल विल रिकॉल एंड पीपल विल अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ मैगी, एंड वी शुड गो फॉर दिस। ऐसा कहते हैं कलिनरी वर्ड में, वी फर्स्ट ईट विथ आवर आईज। ऐसा कहते हैं कि हमारी आंखें डिसाइड करती है कि
कोई फूड खाना है या नहीं खाना है, मुंह का रोल तो बाद में आता है। और मुझे लगता है यही एनालॉजी हमारे प्रेजेंटेशंस के साथ भी जाती है। आप पावरपॉइंट स्लाइड्स पे जो दिखा रहे हैं, आपका ऑडियंस आंखों से वो देख रहा है और आंखें डिसाइड कर रही है कि आज कुछ अच्छा सुनने को मिलने वाला है क्या। आप ये स्लाइड देख रहे हो, एक्साइटिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये स्लाइड देखने में मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्लाइड आपने शायद पहली बार देखी है ना। आपने इससे पहले जो भी प्रेजेंटेशंस अटेंड किए होंगे, मुझे नहीं लगता ये स्लाइड इस तरीके से आपने देखी होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि try to incorporate that X factor into your presentation. Your audience should get excited कि उनको आज नया कुछ तो भी सुनने को मिलने वाला है, एक अच्छा अनुभव मिलने वाला है, a great learning experience they are about to gain through your lecture। और ये अगर आप इन्फ्यूज कर देते हो, ये मैसेजेस सब्टली अगर आप पास ऑन कर देते हो, तो मुझे लगता है our presentation will fall under the category of effective presentation। और मैं जो बोल रहा था कि हमारा ऑडियंस आंखों से जज कर लेता है कि आपकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी क्या रहने वाली है। देखिए, एमएस ऑफिस में ही जो आप एमएस पावर पॉइंट का पैकेज यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, उसमें ना ग्रिड नाम से एक फंक्शन है। ग्रिड व्यू उसको कहते हैं। ग्रिड व्यू यानी ये आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो, कि आपके प्रेजेंटेशन का अगर ग्रिड व्यू लेते हो, एक ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन जो है उसका एक ग्रिड व्यू लेते हैं, तो वो स्लाइड्स कुछ इस तरीके से दिखती है। आप देख रहे हो सभी स्लाइड्स एक जैसे दिख रही है। सभी स्लाइड्स का लुक, लेआउट, कलर कॉम्बिनेशंस, टेक्स्ट का अरेंजमेंट, इट लुक्स सिमिलर। एज ए प्रेजेंटर, अगर वो प्रेजेंटर ये स्लाइड को चेंज करके ये स्लाइड पे आता भी है, तो भी वो खुद ही प्रेजेंटर शॉक हो जाएगा कि सही में मैंने स्लाइड चेंज की है या नहीं की है। उसको टेक्स्ट पढ़ना होगा कि स्लाइड चेंज हुई है कि नहीं हुई है। एंड सिमिलर एक्सपीरियंस विल हैपन विथ योर ऑडियंस एज वेल। उनको भी समझ में नहीं आएगा कि यार ये स्लाइड चेंज हुई है कि नहीं हुई है। मुझे क्या लगता है, आपके प्रेजेंटेशन इफेक्टिव कब होंगे, जब आपका ग्रिड व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ओपन प्रेजेंटेशन, उसी का एक ग्रिड व्यू का मैंने स्नैपशॉट लिया है जो आपके सामने है। आप देख रहे हो हर एक स्लाइड मेरी डिफरेंट लग रही है। एज यू कैन सी, every slide I have literally crafted. It is called as well crafted slides। और हर स्लाइड में अपना एक मैसेज है और हर स्लाइड में जान दिख रही है। कुछ तो भी नया एक्स फैक्टर बोलिए या कुछ तो भी नई चीज आपको देखने को मिल रही है। एंड माय मैसेज टू यू इज दैट कि वी शुड नॉट प्रिपेयर all the slides in a proper template, you can say। rather we should achieve Rather, we should treat every slide as a separate canvas, and we should design it in a very, and we should give a separate treatment to each and every canvas, that is each and every slide। अभी मैं यहाँ से आगे टिप्स शेयर कर रहा हूँ, 13 टिप्स एक एक करके। वी आर ऑन टू टिप नंबर 1। जस्ट अ मोमेंट। आर यू विथ मी गाइस? Yes, yes. Yes, sir. I Yes, have one sir. question. Yes, sir. ओके। Hello, sir. यस सर। Sir, while we presenting our topic, at the time so many things are there in which our college name and our name, what may be. So some of the presenters shows that at the header part and footer part, common Correct, things sir. we have placed in Correct, sir। multiple slides. Correct, sir। So how So, we will cover that one? ओके, ओके। इट डिपेंड्स सर कि आप अगर नैक कमेटी के सामने ये कर रहे हो, तो इट लुक्स गुड एंड इट इज वेरी रिलीवेंट। कि आप डिपार्टमेंट का नाम फ्लैश कर रहे हो स्लाइड पे, हेडर या फुटर में, तो उसमें ना स्लाइड नंबर डालने की जरूरत नहीं होती। पर जो रूटीन क्लासरूम प्रेजेंटेशंस होते हैं या फिर आप गेस्ट लेक्चर करके कोई रिसोर्स पसंद करके आप कहीं पे जा रहे हो, तो उसमें ये सब डिटेल्स की जरूरत नहीं होती। आप जैसे मेरे भी स्लाइड्स देख रहे हो, इसमें मैंने ना ही मेरा नाम डाला है, मेरे टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे हेडर फुटर में कहीं नहीं डाला है। आप देखेंगे स्लाइड नंबर मैंने कहीं नहीं डाला है ना। तो इनको हम नॉन इसेंशियल आइटम्स कहते हैं। तो ये आइटम्स जो है ये एक्चुअली कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पावर पॉइंट की स्लाइड में, तो इट इज ओके। बट अदरवाइज इफ इट इज unnecessarily occupying the space of your slide, then what I think it should be avoided। So I'm going to address these issues, sir। Yes, sir. Yes, sir. So I'm about to begin my core presentation now। मैंने अभी तो कोर में हाथ ही नहीं डाला। अभी तक जो मैं बात कर रहा था, मैं तो आपको मूड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कुछ तो भी काम की चीज बताऊं।
आपको एक माइंडसेट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये प्रेजेंटेशन का एक एक पार्ट होता है कि यू शुड यू नो हमने हमारे ऑडियंस को एक मूड में लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्योंकि योर ऑडियंस शुड गेट कनेक्टेड विथ यू। और जब वो कनेक्ट हो जाता है ना आपका ऑडियंस, देन दे बिकम रिसेप्टिव। रिसेप्टिव यानी क्या, वॉट एवर यू आर गोइंग टू टेल, दे आर इन अ मूड टू लिसन टू यू केयरफुली। तो वो तो मैंने एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया है कि आज कुछ तो भी नया, कुछ तो भी एक्साइटिंग हम सुनने जा रहे हैं, एंड नाउ वी आर ऑन टू इट नाउ। वेल, वी टू टिप नंबर 1। तो आप ये टिप सिर्फ 13 लाइंस आपको लिखनी है, अगर इफ यू फील। So my first tip is we should organize our presentation, structure your presentation well, and how to achieve this, we are on to it. देखिए, प्रेजेंटेशंस की दो कैटेगरीज और एक एनालॉजी मैं आपको दे रहा हूं। आई ट्रीट प्रेजेंटेशंस लाइक कैट्स। द फर्स्ट वन इज कंसिडर्ड एज एन अगली कैट एंड अनदर वन इज क्यूट कैट। और मुझे लगता है प्रेजेंटेशंस की भी दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं क्यूट प्रेजेंटेशंस और दूसरे होते हैं अगली प्रेजेंटेशंस। सो ऑफ कोर्स आपका ऑडियंस देखना क्या पसंद करेगा, कौन सी कैट को। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि एक मिनट के लिए आपको दो में से किसी एक कैट की तरफ स्टेयर करना है, देखते रहना है, आप कौन सी कैट की तरफ देखना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स आपका सबका जवाब 100% लोगों का शायद क्यूट कैट की तरफ देखना आप पसंद करोगे। एक मिनट तक लगातार आपको देखना है, वहां पे तो बात होती है ऑडियंस की 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अगर उसमें आप अगली चीजें दिखाओगे तो वो ऑडियंस बोर हो जाएगा बॉस। उनको क्यूट चीजें दिखाइए, इंटरेस्टिंग चीजें दिखाइए, तो आपका ऑडियंस जो है वो ग्लूड रहेगा स्क्रीन के साथ। So of course my message to you is कि we should strive for preparing cute slides, and we should do away with this ugly cats or ugly presentation. But it was on a lighter mood. Now we're on to the technical aspects of it. The presentation के दो aspects होते हैं. One is called the technical aspect. Technical aspect deals with the contents of your presentation, कि आप कौन से मुद्दे, कौन से takeaways की बात कर रहे हो आपके presentation के through, and I believe this is the core of your presentations. If it is not there, this is what is called as the substance. And if substance is not there, no concrete takeaways are there for your audience through your presentations, of course audience will not take any interest even though your presentations are looking very good. But still, if it is contentless, and that is why it is supposed to be the core part of it, and basically we all have been striving to prepare good contents, no doubt about that. And the second aspect is considered as the visual or perceptual aspect. This is more about how you are presenting your contents, what sorts of visuals you have been using to present your contents. And if you ask me, sir, what is the definition of professional presentation? So I will define professional presentation as a presentation which is combining the features of both. Means it is covering the technical aspect, means it is content rich, you can say, and at the same time it is focusing more on presenting those particular contents in a very great what we can say, with very great visuals, you can say. So professional presentations are the presentations which are combining both. It is content rich and it is visually great, and if you are achieving this, of course your presentation will fall under the category of प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन जो हम टिप नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। ये फॉरमोस्ट क्वालिटी है। इफ योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वन आफ्टर अनदर एंड यू आर सिंपली प्रेजेंटिंग इट, यू आर अनफोल्डिंग इट, आप क्लिक करते जा रहे हो, स्लाइड के ऊपर स्लाइड बम्बार्डिंग हो रही है। So of course, those particular presentations are not considered as the professional presentations. Professional presentations are well organized presentations. The whatever content you are discussing, you have organize those particular contents with respect to different themes, different issues, or different sections, you can say. So the first quality of a professional presentation is it is a well organized and well structured presentation. Second one is about the design. It is more about the visuals those you have been using in your presentations. And the third most important, देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है ये हम लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं। यू आर टेकिंग योर टाइम, आप कितना उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कितना कंटेंट आप डाउनलोड कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, इट इज टोटली अप टू यू। व्हाट टाइम यू आर कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर योर कंटेंट्स एंड ऑल, इट इज टोटली अप टू यू। ये घर में बैठ के कर रहे हैं हम लोग, डिजाइन घर में बैठ के कर रहे हैं, अपना टाइम हम लोग ले रहे हैं। बट द थर्ड इम्पॉर्टेंट
component of a professional presentation is about the delivery as well. आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, कंटेंट रिच प्रेजेंटेशन बनाया, बहुत ही कॉन्क्रीट टेक अवेज है, बहुत अच्छे विजुअल्स यूज कर लिए हैं, बट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी यू आर फंबलिंग, यू आर सर्चिंग फॉर प्रॉपर वर्ड्स, आपका एक्सप्रेशन लेस है या बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं लग रही है, एनर्जी नहीं लग रही है डिलीवरी में। ऑफ कोर्स इतना अच्छा जो होमवर्क किया था वो एक अच्छी डिलीवरी की वजह से शायद शायद हम लोग एक अच्छा फीडबैक अचीव नहीं कर पा रहे हैं। डिलीवरी इज मोर अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स यू कैन से, और द प्रेजेंटेशन स्किल्स इन जनरल यू कैन से। सो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन होते हैं जो कंटेंट रिच है, जो विजुअली ग्रेट है, और उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन भी उसका उतना ही तगड़ा है। तो ऑफ कोर्स वी शुड स्ट्राइव फॉर ऑल दिस थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। पर आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये तीनों अलग सेपरेट डिसिप्लिन है। हाँ, आप पे डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज द पब्लिक स्पीकिंग एंड इट इज ऑल टुगेदर सेपरेट डोमेन। तो इस पे मैं बात करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग पे भी, पर आज मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ डिलीवरी पे, मैं बात कर रहा हूँ पहले दो मुद्दों पे, और उसमें भी अभी जो टिप नंबर 1 मैं शेयर कर रहा हूँ इट इज अबाउट द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन। वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और बचे हुए 12 टिप्स जो है मैं बात करने वाला हूँ डिजाइन और विजुअल्स की। तो मैसेज इज प्रेटी क्लियर कि मैं 13 गाइडलाइंस देने वाला हूँ, उसमें से पहला जो पार्ट है यानी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के 3 कंपोनेंट्स। पहला आपका स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी हम लोग लेआउट वगैरह जो तैयार करते हैं वो पार्ट, द फ्रेमवर्क, द ऑपरेटिंग बाउंड्रीज ऑफ योर प्रेजेंटेशन। सेकंड वन इज द डिजाइन, दैट इज द विजुअल्स, हाउ आर यू presenting your substance or the text with the help of visuals, diagrams, pictures, images and all. And the third part is delivery. तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला टिप मैं स्ट्रक्चर को लेके दे रहा हूँ, और बची हुई 12 टिप्स मैं विजुअल्स को लेके दे रहा हूँ। मैं आज पब्लिक स्पीकिंग को लेके कुछ भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा आईसीटी का वर्कशॉप है, सॉफ्ट स्किल में ये चीज जाती है पब्लिक स्पीकिंग की, तो वो देखते हैं बाद में। पर मैं पहले 2 चीजों पे फोकस कर रहा हूँ। मैं मैसेज टू यू इज कि अगर आप सही में हमारे प्रेजेंटेशंस को इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वी शुड स्ट्राइव फॉर 360 डिग्री प्रेजेंटेशन। व्हाट इज 360 डिग्री प्रेजेंटेशन? जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया है अभी, उन सभी कंपोनेंट्स पे, और इसमें भी फाइनल एलिमेंट्स होते हैं। जस्ट टेक अ लुक एट दिस। नो, आप अब जहां पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, सपोज फिजिकल सेटअप में आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो योर अपीयरेंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रेजेंटेशन। हाउ आर यू ग्रूमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे? आपने अपने अपैरल क्या पहने हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन से आपका एंटायर ग्रूमिंग का पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। आपका डिमीनर, आपका एंथुसियाज्म, आपकी एनर्जी लेवल, how excited you are about your presentation on that doomsday, it equally matters boss। और एक थ्योरी ये भी कहती है पब्लिक स्पीकिंग में कि अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को लेके एक्साइटेड नहीं है तो आपका ऑडियंस भी एक्साइटेड नहीं रहेगा। if you really want your audience to get excited, then of course it starts with you. You should look very excited, you should look very enthusiastic, sharing some interesting and meaningful things with your audience. And if you could subtly pass on particular messages through your body language, so of course your audience will equally get excited about your presentation. And if you are excited, your audience is excited, it's a win-win situation, and your presentation will be reckoned as a powerful and effective presentation. So appearance is supposed to be an indispensable part to achieve 360 degree presentation. The second one is content, no doubt about that. And contents means the structure, the specific takeaways, the substance of your presentation, the pointers that you have been rendering with your audience. All these things are supposed to be the core part. आपका देखना इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, पर आपका प्रेजेंटेशन कंटेंट रिच है, और बाकी जो दिस इज व्हाट इज सपोज्ड टू बी द कोर पार्ट। सबसे बेसिक पार्ट तो आपके प्रेजेंटेशन का कंटेंट ही है, नो डाउट अबाउट दैट। और उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें आती है उसके ऊपर भी आप अगर मेटिकुलसली काम कर देते हो तो ऑफकोर्स आपका प्रेजेंटेशन 360 डिग्री प्रेजेंटेशन हम लोग जिसको कह सकते हैं। देन along with that the design part, the design में क्या आएगा, तो of course the visuals that you have been using, the aesthetics of your slides, the color combinations you have been using, the backgrounds, this background I am recurring to, the background, the images, the analogies you have been giving, the examples you are citing, the illustrations you are rendering, the diagrams, the flowcharts, the smart arts, the graphs, the figures, all this constitutes the visuals or the designs of your presentation. And if you are meticulously working on this, of course, it is eventually going to contribute in enhancing the value of our PowerPoint slides and eventually delivery. So in capsule form, what constitutes delivery? It is the confidence, your entire body language, you can say, the command over topic, command over language that you have been using,
your voice, your tone, your voice modulations rather, the expressions and all this constitutes the delivery part, you can say. And of course, the topmost part of delivery is the knowledge regarding the subject you have been handling. That is the most important thing. And how you have been presenting those particular substance to your audience, that equally matters in making your presentation effective. एक मैं रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इट हैपेंड विद मी ओनली. आप जो स्लाइड अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, नागपुर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और वहाँ पे एवरी ईयर दे जनरली ऑर्गेनाइज सम कॉम्पिटिशंस, कार्निवल्स होते हैं ना, इंटर कॉलेजिएट कार्निवल्स. उसमें एक इवेंट होता है आपके पॉपर प्रेजेंटेशन की कंपटीशन, एंड इट इज अ इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन. बड़े लेवल पे करते हैं वो, महाराष्ट्र लेवल पे ये होती है, और ये कोविड के से ठीक पहले की बात है. और मुझे उन्होंने उनको कहीं से पता चला कि आई एम इनटू दिस डोमेन, PowerPoint presentation, so they invited me to judge those particular teams. तो उसमें कुछ 200 के आसपास एंट्रीज आई थी, दो स्टूडेंट्स की एक टीम थी, और ऐसे 200 टीम्स की एंट्रीज उसमें आई थी. और उनका जो इन हाउस स्टाफ था वो कॉलेज का, उन्होंने 200 में से स्क्रूटिनी कर ली थी, और उसमें से सिर्फ 8 अच्छी टीम्स उन्होंने मेरे सामने रखी थी ऑन द फाइनल डे ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन. और मुझे बताया गया, आई वॉज द सोल जज, मैं अकेला ही था जज करने वाला. और 8 टीम्स थी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी के जो बेहतरीन प्रेजेंटेशंस देखे, उनमें ये 8 शायद मैं रेकन करूंगा कि मैंने अच्छे प्रेजेंटेशंस देखे रहे. ये स्टूडेंट लेवल के, ये पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स थे, नो डाउट अबाउट दैट. और ये स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स है, बहुत दे आर टेक्नो सेवी, रादर दे आर बॉर्न विद टेक्नोलॉजी. सो उन्होंने टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का बहुत ही स्मार्टली यूज किया था पॉपन की स्लाइड्स बनाने के लिए. और 8 बेहतरीन प्रेजेंटेशंस मैंने देखे, वहां पे इवेल्युएट किए, और इवेंचुअली बात ये आई कि मुझे 2 प्राइजेस देने थे, नंबर 1 और नंबर 2. तो इंसिडेंटली इट हैपेंड कि 2 प्रेजेंटेशन जो टॉप के थे उनमें टाई हुआ था, दोनों के मार्क्स इक्वल आए थे. Then I discussed these particular things with the organizers, and I told them that it just incidentally happened कि टॉप की दोनों टीम में टाई हुआ है. Now you just suggest me what to do. Organizers का कहना ये था कि नहीं सर, somehow we need to identify number 1 and number 2, क्योंकि हम लोगों को 2 prizes देने हैं, we can't share the prize. तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप बताइए क्या कर सकते हैं. तो फिर मैंने एक क्राइटेरिया यूज किया, दैट वाज द 360 डिग्री प्रेजेंटेशन. उसमें जो 2 प्रेजेंटेशंस थे जो मुझे अभी भी याद है, एक था ग्रीन रिवॉल्यूशन. उनकी जो पहली स्लाइड थी आपके स्क्रीन पे अभी जो दिख रही है, उसकी जैसे सिमिलर थी. मुझे जितना धुंधला धुंधला याद है उसकी, मैंने वैसी मेरे लेवल पे ये स्लाइड तो मैंने बनाई है, पर वो 2 लड़कियां थी, उन्होंने ये स्लाइड बनाई थी. और दूसरा एक टीम था, दोनों बॉयज थे वो, और उन्होंने पतंजलि के सक्सेस स्टोरी पे प्रेजेंटेशन किया था. दोनों प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन थे. ये जो पतंजलि का प्रेजेंटेशन था, उसमें सक्सेस स्टोरी में उन्होंने बहुत ही स्मार्टली हर एक प्रोडक्ट को बहुत ही स्मार्टली यूज किया था. पॉपकॉर्न की स्लाइड पे, फर्स्ट स्लाइड पे पतंजलि का एक प्रोडक्ट आ रहा था, सबटली आ रहा था, ये वो बता भी नहीं रहे थे, पर मैं एज ए जज उसको ऑब्जर्व कर रहा था, और बहुत ही बेहतरीन तरीका मुझे लगा कि सक्सेस स्टोरी नरेशन का भी एज वेल. और दूसरा था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और ये दोनों लड़कियां थी, और ये लड़कियों ने बहुत ही मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत की थी स्लाइड्स बनाने के लिए. और मैं, क्योंकि मैं ये सब बनाता हूँ ना, मुझे मालूम है हाउ टाइम कंज्यूमिंग दिस वन इज. और ये तो कंपटीशन थी, तो ऑफकोर्स उन्होंने टाइम लिया हुआ, मुझे बिल्कुल स्पष्ट महसूस हो रहा था. और उन्होंने हर स्लाइड पे स्मार्टली, ग्रीन रिवॉल्यूशन का टॉपिक था, तो हर स्लाइड पे ग्रीन को बहुत ही स्मार्टली यूज किया था. अलग अलग छटाएं ग्रीन कलर की हर स्लाइड्स पे मुझे दिख रही थी, और रिलेवेंट मैसेजेस भी दिख रहे थे. तो इवेंचुअली मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो टीम थी उनको फर्स्ट प्राइज दिया. और उसका कारण ये था कि ये दोनों लड़कियां थी, और जिस दिन प्रेजेंटेशन था उस दिन ये दोनों लड़कियां व्हाइट सलवार कमीज पहन के आई थी, और उन्होंने ग्रीन कलर की चुन्नी ओढ़ी थी उस दिन, दोनों लड़कियों ने. और वो ग्रीन चुन्नी के लिए मैंने इनको 1 मार्क्स ज्यादा दिया था. और मैं, मुझे इतना इतना आई वॉज सो सरप्राइज कि लड़कियों ने कितना मेटिकुलसली सोचा था अपने प्रेजेंटेशन को लेके, कि इवन ड्रेस कोड क्या रहेगा उसमें भी ग्रीन रिवॉल्यूशन कर रहे, तो क्यों ना ग्रीन कलर की चुन्नी हम लोग ओढ़े. इट इज आउटस्टैंडिंग, बॉस, इनक्रेडिबल. और उसी चीज का मैंने इसी को मैं कह रहा हूँ 360 डिग्री प्रेजेंटेशन इफेक्ट. और ऐसे प्रेजेंटेशन याद रहते हैं. इस बात को 4-5 साल हो गए होंगे शायद, पर आई स्टिल विविडली रिमेम्बर. आई एम नरेटिंग द स्टोरी, और वो पूरा फ्लैशबैक मेरे आंखों के सामने से जा रहा है. और ऐसा जिंदगी में कितनी बार होता है बॉस. ये तभी होगा जब हम लोग कोई यूनिक चीज ऑब्जर्व करते हैं.
एंड रादर इवन आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दोस पर्टिकुलर गर्ल्स बॉस कि कितना मेटिकुलसली उन्होंने काम किया था. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कि आपके प्रेजेंटेशन की रिकॉल वैल्यू अगर ज्यादा है तो दोस प्रेजेंटेशन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इफेक्टिव एंड मेमोरेबल प्रेजेंटेशंस. हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चरिंग की. So my message to you is try to structure your presentation if you really wish to achieve the effect in your presentation. So how to structure your presentation, we are on to it now. देखिए, हमारे presentations effective तब नहीं होते हैं जब हमारा ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है. This is what I was talking about a while ago. कि आपके प्रेजेंटेशंस अगर मंडेन है, बोरिंग से है, इंसिपिड से है, अनऑर्गेनाइज से है, तो आपका ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा. और आपका ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यानी यू हैव लॉस्ट द वे बॉस. आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, ढील देना जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से आपका ऑडियंस अभी ये माइंड बना के बैठ चुका है कि तेरे को यार जो बोलना है वो बोल, मैं तो डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, आई एम ऑफ एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट, इवन दो आई एम फिजिकली प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम हॉल, बट स्टिल I am disconnected. So this should not happen with us. ये कब होगा? आपका ऑडियंस ऑल थ्रू द प्रेजेंटेशन, ये देखो ऑडियंस को एक जगह बिठा के रखना इट इज इटसेल्फ ए चैलेंज. 30 मिनट का एक लेक्चर भी बहुत ज्यादा चैलेंजफुल हो जाता है जब आप आपके ऑडियंस को अगर कनेक्ट करते हो ना. तो एक मुझे क्या लगता है, रियल फीडबैक क्या आता है, सर 1 घंटा कैसे गया पता ही नहीं चला. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द रियल फीडबैक बॉस. और ये कब होता है मालूम है? जब आपका प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है. स्ट्रक्चर्ड यानी क्या? आप क्या बताना चाहते हो, ये अगर ऑडियंस को क्लियर है, आज से प्रेजेंटर आपको मालूम है कि आपका टॉपिक क्या है, और आप आने वाले 1 घंटे का अगर आपको समय दिया गया है प्रेजेंटेशन के लिए, तो 1 घंटे में आप क्या चीजें डिस्कस करने वाले हो, ये आपके ऑडियंस को मालूम है और आपको भी मालूम है. तो है ना, एक अच्छा इफेक्ट तैयार हो जाता है. वही अगर एक के बाद एक स्लाइड्स आ रही है, जिसमें पहले स्लाइड का दूसरे स्लाइड के साथ शायद ही कोई कनेक्शन हो, और एक के बाद एक स्लाइड जस्ट अनफोल्ड हो रही है, और ये शो कब जाके खत्म होगा ये प्रेजेंटर को भी नहीं मालूम और ऑडियंस को भी नहीं मालूम, तो समझ जाइए आपका ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता है. मैं तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन में ये भी ऑब्जर्व किया है कि खुद प्रेजेंटर को भी ये नहीं मालूम होता है कि आने वाली स्लाइड पे होगा क्या. इवन थैंक यू की स्लाइड आ जाती है, फिर भी वो आगे जो बैठा है स्लाइड चेंज करने के लिए, उसको बोलता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और अचानक से थैंक यू की स्लाइड आने के बाद वो चौंक जाता है, अच्छा थैंक यू की स्लाइड आ गई क्या, ठीक है ऑडियंस, थैंक यू, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग. ये जो चीज है ये ना हमारे प्रेजेंटेशन का इफेक्ट पूरा मार खा जाता है. एज ए प्रेजेंटर वी शुड वेरी फैमिलियर विद कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आने वाला है, हमारी थैंक यू की स्लाइड कौन से स्लाइड के बाद है, ये एज ए ऑडियंस आपको मालूम होना चाहिए. आपके हर प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे क्या मैसेजेस है, उसमें डेलिब्रेशंस क्या करने हैं, ये अगर आपको मालूम है ना, तो ऑफ कोर्स आपका उस पर कमांड दिखता है और उससे एक अच्छा इफेक्ट आप अचीव कर सकते हो. और ये इफेक्ट आएगा कब? जब आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स आपने ऑर्गेनाइज की हैं. सो हाउ टू ऑर्गेनाइज योर स्लाइड्स, वी आर ऑन टू इट. देखिए आपने भी, आपके साथ भी ये बहुत बार हुआ होगा, ऑडियंस किसी ऑडिटोरियम हॉल में आप बैठे, कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, और आपने शायद आपके बाजू वाले में जो बैठा है उसको आपने शायद पूछा होगा कि भाई ये क्या चल रहा है और ये कब तक चलेगा. तो आपके ऑडियंस के एक्सप्रेशंस अगर ऐसे है कि क्या चल रहा है भाई, ये कि पहली स्लाइड में कुछ और था, अभी एक स्लाइड पे और कुछ बात हो रही है, और ये आने वाली स्लाइड में भी मालूम नहीं क्या आने वाला है, और इनका कनेक्शन क्या है ये सब स्लाइड्स का आपस में, ये अगर ऑडियंस क्लूलेस रहता है तो ऑफ कोर्स ऐसे प्रेजेंटेशन को हम अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशंस कहते हैं. और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जनरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं. अगर आज के मेरे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की अगर आप बात करेंगे तो आप जस्ट रिलेट करने की कोशिश करिए. पहला आधा घंटा में क्या बात कर रहा था, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था, मैं एक आपको मूड में लाने की कोशिश कर रहा था, और मैं आपको जस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो टॉपिक में डील कर रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और हमने ये चीज 3 घंटा क्यों सुननी चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दिया कुछ इंटरेस्टिंग एनालॉजीज देके. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको 13 टिप्स देने वाला हूँ, और आपको भी मालूम है इसी मोमेंट पे कि मैं टिप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, इसके आगे मैं और 12 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा और मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा. यानी क्या, एज ए प्रेजेंटर मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और कहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा. एंड एज ए ऑडियंस यू आर वेल वर्स्ड, आपको भी मालूम है कि यहाँ से आगे मैं एक एक करके 12 टिप्स 13 टिप्स की बात करूंगा और मेरा प्रेजेंटेशन वहां पे खत्म हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन. मैं टिप की बात कर रहा हूँ, आप सेक्शंस की बात कर सकते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन में, इसमें ना एक ये प्रिंसिपल थोड़ा सा आप गूगल पे भी सर्च करिएगा, ये भी फिर से पब्लिक स्पीकिंग का ही
एक प्रिंसिपल है, इट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग थ्योरी। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके जो कंटेंट है उसको आप छोटे लॉट्स में अगर सर्व करते हो तो वो कंटेंट्स की रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है। और यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास बहुत सारे कंटेंट्स है, वो कंटेंट्स को आप अगर 3 या 4 सेक्शन में डिवाइड कर देते हो, वो सेक्शन को हेडिंग दे देते हो और वो सेक्शन के अंदर आप एक एक छोटे छोटे मैसेजेस देते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज हो जाता है, ऑडियंस को समझने में आसानी हो जाती है, रिमेम्बर करने में आसानी हो जाती है, उसको रिटेन करने में भी आसानी हो जाती है। So this is very important principle that we may follow while preparing our presentation. इसमें बॉटम लाइन क्या करी है, वॉट एवर मैसेजेस यू विश टू पास ऑन, ट्राई टू पास ऑन योर मैसेजेस इन स्मॉलर लॉट, स्मॉलर चंक्स यू कैन से, छोटे छोटे सब्टल मैसेजेस दीजिए, उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाती है। एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीजों में बात मत करिए, आप बिट्स एंड पीसेस पे इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन छोटे छोटे लॉट में सर्व करिए। आपका ऑडियंस चेरिश करेगा उसको, अप्रिशिएट करेगा और रिकॉल भी करेगा उसको, और उसको जब उसका काम होगा ना उस मोमेंट पे उसको वो चीजें याद भी आएगी। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये अचीव कैसे कर सकते हैं? इफ सपोज आपको एक 1 घंटे का प्रेजेंटेशन तैयार करना है, और आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग के प्रिंसिपल्स है उसमें ये भी कहा गया है कि आपके 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में, आपका प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपका ऑडियंस 1 घंटे में से 3 या 4 चीजें ही याद रख पाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अगर 1 घंटे का प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आप 1 घंटा लगातार बात तो कर रहे हो, पर आपका ऑडियंस हर एक वर्ड याद नहीं रख पाता है। आपके 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में से उसको 3 या 4 कोई बड़ी चीजें याद रह जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके 1 घंटे के प्रेजेंटेशन से वो अगर 3 या 4 चीजें ही रिमेम्बर कर पा रहे हैं, तो वो उनको मत डिसाइड करने दीजिए कि आपके प्रेजेंटेशन से उन्होंने क्या चीजें याद रखनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको बता दीजिए कि आप मेरे 1 घंटे से के लेक्चर में से आप 4 कौन सी चीजें लर्न कर सकते हो, उसको याद भी रख सकते हो, और आप इनकलकेट भी कर सकते हो और आपकी रियल लाइफ में यूज भी कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द टेक अवेज। So at the outset, while preparing our presentation, we are supposed to prepare the outline of our presentation, कि हमारे प्रेजेंटेशन के कंटेंट क्या रहेंगे, और 4 मुख्य मुद्दे, अगर आप 1 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए 3 या 4 मुख्य मुद्दे, जिसको मैं बोलूंगा सेक्शंस, अगर आप 4 सेक्शंस की बात कर सकते हो, तो सेक्शन सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। आप एक पीस ऑफ पेपर पे ये सेक्शंस लिख लीजिए, इसको लॉजिकल ऑर्डर में सजा लीजिए कि एक घंटे के मेरे प्रेजेंटेशन में मैं 3 या 4 चीजों की ही बात करने वाला हूँ, और इसके मेजर टाइटल या थीम जो है वो ये रहेगी। ये अगर आपका वर्क हो चुका है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द आउटलाइन और फ्रेमवर्क ऑफ योर प्रेजेंटेशन। एंड इफ योर प्रेजेंटेशन इज हैविंग सच काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, then obviously your presentation is considered as a well organized, a well thought of, well crafted presentation, you can say. It is called as the structured presentation. तो स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन में ना यू कैन अचीव ए नेचुरल फ्लो। जब आप ये प्रेजेंट करते हो ना, उसमें एक नेचुरल मोमेंटम गेन होता है। देखिए, आप प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हो, आप सेक्शन नंबर 1 पे हैं, और यहाँ पे आप रिपल्स क्रिएट कर रहे हो, you are exploring section number 1 thoroughly, and then you are jumping on to the next section, and again you are discussing, deliberating that particular second section, you are exploring the entire theme, and then you are moving down to the next section. सो ऑटोमेटिकली आपका ऑडियंस जो है ना, ये बेटर कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने आपको जो मैसेजेस देने हैं, आपने वो मैसेजेस को ठीक से ऑर्गेनाइज कर दिया है कि मुद्दा नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ, ये जैसे मैं टिप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट होगा मैं टिप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चरिंग यानी क्या। मैं यही तो कर रहा हूँ कि टिप नंबर 1 को लेके मैंने बता दिया है कि ट्राई टू स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। आपको ये चीज तो याद रह जाएगी, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद 3 दिन 5 दिन शायद 7 दिन इस सत्र ने बताया था कि प्रेजेंटेशन इफेक्टिव करने हैं, तो try to structure your presentation, and this is the very loud message that I am trying to pass on, and I am justifying this particular, I am explaining you what is structuring and how to structure your presentation, and this is the way you try to organize your presentation। इससे ना एक नेचुरल फ्लो मेंटेन होता है, एक क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑटोमेटिकली गेन हो जाता है आपके प्रेजेंटेशन में जब आप ये प्रेजेंटेशन करोगे स्लाइड शो के थ्रू। इसी सेंस में हाउ टू स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन एक एनालॉजी दे रहा हूं। ट्राई टू फॉलो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अप्रोच। व्हाट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अप्रोच? हम लोगों को अगर एक घर बनाना है, तो घर बनाते वक्त अगर सिविल इंजीनियरिंग के सेंस में बात करनी है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पिलर्स तैयार करते हैं। पिलर के बाद
आपका तैयार होता है स्लैब, जिसको हम स्लैब वर्क कहते हैं। एक बार स्लैब वर्क हो गया तो उसके बाद फिर ब्रिक वर्क शुरू होता है। मैं कर रहा हूँ बस यही 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है आपका प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स तैयार करते वक्त। हम लोग सबसे पहले पिलर्स पे काम करेंगे। पिलर्स यानी क्या? द कॉन्क्रीट टेकअवेज। आपके ऑडियंस को आप क्या देना चाहते हो, 3 या 4 मुख्य मुद्दे, जिसको मैं कह रहा हूँ पिलर्स। उसके बाद आएगी स्लैब। स्लैब यानी क्या? ये 4 पिलर में से पहला, यानी पहला सेक्शन कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में सजाना। और उसके बाद आता है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क यानी क्या? ब्रिक वर्क यानी हर एक सेक्शन में आप जो सबटल मैसेजेस दे रहे हो, हर एक स्लाइड को मैं एक ब्रिक कह रहा हूं, तो आपके हर एक सेक्शन में मल्टीपल स्लाइड्स आएगी और वो ब्रिक की तरह काम करेगी। सो ट्राई टू फॉलो दिस पर्टिकुलर अप्रोच व्हाइल क्रिएटिंग योर पावरपॉइंट स्लाइड्स। स्ट्रक्चरिंग करते वक्त हम लोग जनरली 3 सेक्शन, ब्रॉड सेक्शंस में काम करते हैं। पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन 1 घंटे के लिए, इफ सपोज आप 40 स्लाइड्स बना रहे हो, तो इस 40 स्लाइड का ब्रेकअप होता है। पहली कुछ स्लाइड्स को हम इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स कहते हैं। बाद में बीच में की जो स्लाइड्स होती है उनको हम बॉडी या फिर कोर कहते हैं हमारे प्रेजेंटेशन का, जिसमें हमारे मेन कंटेंट्स जाएंगे। और उसके बाद आते हैं कंक्लूडिंग स्लाइड्स। आज का मेरा प्रेजेंटेशन भी आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो मैंने भी तो ये सेम जो टिप्स आपको दे रहा हूं मैंने खुद फॉलो भी की है। मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, एक कॉन्क्रीट धासु इंट्रोडक्शन मैंने किया, मैंने इंपॉर्टेंस समझा दिया, और अभी मैं बॉडी में हूँ। मैं टिप्स शेयर कर रहा हूँ, मैं जो 13 गाइडलाइंस आपको शेयर करने वाला हूँ, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कोर और द बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन। और इवेंचुअली कंक्लूजन आएगा, जब मेरी कंक्लूडिंग स्लाइड्स आएगी, दैट टाइम अराउंड यू कैन ऑब्जर्व। बट दिस शुड बी अचीव्ड व्हाइल क्रिएटिंग योर प्रेजेंटेशन, कि अचानक से स्लाइड शुरू में होनी चाहिए और अचानक से थैंक यू वाली स्लाइड भी नहीं आनी चाहिए। दिस इज द मैसेज। मैं कुछ मैसेजेस दे रहा हूँ आपको, या कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चरिंग के सेंस में आप ना प्रेजेंटेशन में, ऑफ कोर्स आपकी टाइटल स्लाइड तो रहेगी, जिसको हम कवर स्लाइड भी कहते हैं। उसके तुरंत बाद क्या आप स्लाइड नंबर 1 डाल देंगे? नो वे। मुझे लगता है कुछ इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स आपने इंटरपर्स करनी चाहिए, और जिसमें एक स्लाइड मुझे लगता है मीनिंगफुल हो जाती है, जो होती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज के मेरे प्रेजेंटेशन में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आने वाले 3 घंटे हम क्या चर्चा करने वाले, ये पहले मैंने डिस्कस किया। लेट योर ऑडियंस नो व्हाट यू आर ऑन टू, कि आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको जो टाइम दिया गया है उसमें आप क्या डिस्कस करने वाले हो, एक मेजर थीम क्या है। सो ट्राई टू हैव that particular slide which is talking about the major theme, the major issue under deliberation for the next 1 hour or so. So try to have this particular slide, learning objective या फिर the basic questions to be addressed through this presentation। मैं भी करता हूँ, कुछ स्लाइड्स में मैं की लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये स्लाइड बनाता हूँ, या फिर मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस टू बी एड्रेस्ड, कि 1 घंटे में कौन से सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सवाल 1, सवाल 2, सवाल 3, सवाल 4। आपका ऑडियंस एक्साइटेड हो जाता है, अरे यही तो सवालों के जवाब मैं ढूंढने के लिए बैठा हूँ। यानी क्या? आप आपके ऑडियंस का माइंड रीड कर चुके हो, और ऑडियंस जो सुनने आया है बस उसी सेंस में आप बात कर रहे हो, ये मैसेज सबटली चला गया ना ऑडियंस के पास। ऑफ कोर्स आपका ऑडियंस खुश हो जाता है और वो कनेक्ट होना शुरू हो जाता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इन आवर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। Another one, I consider this particular inclusion of this particular slide is very important. That's the content slide. कि आपके प्रेजेंटेशन के कंटेंट क्या रहेंगे, आउटलाइन क्या रहेगी, जैसे मैं बता रहा था बेसिक क्वेश्चंस टू बी एड्रेस, या फिर कंटेंट 1 2 3 4 आपकी जो सेक्शंस है, आपका सेक्शन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इसकी आउटलाइन, उसके सिर्फ टाइटल्स भी अगर आप एट द अपफ्रंट अगर आप आपके ऑडियंस को दिखा देते हो, आपका ऑडियंस कनेक्ट हो जाएगा बेटर तरीके से। सो दिस इज द क्रक्स, ट्राई टू स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। अनदर टिप, ट्राई टू हैव सेक्शन सेपरेटर्स। यानी क्या? सेक्शन 1 खत्म होने के बाद सेक्शन 2 में जाने से पहले एक लाउड मैसेज आ जाना चाहिए कि आपका सेक्शन 1 यानी इशू नंबर 1 अंडर कंसिडरेशन हैज बीन डेलिबरेटेड। हमने वो डिस्कस कर लिया है, उसको समराइज कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप सेकंड सेक्शन पे जाइए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है? सेक्शन सेपरेटर का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ये क्या करता है? सेक्शन सेपरेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बार ना क्या होता है, ऑडियंस तो ह्यूमन बींग्स ही है ना, हम लोग जब एज ए प्रेजेंटर बहुत दिल खोल के पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी बहुत बार एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अचानक से आदमी को कुछ ना कुछ एब्रप्ट चीजें याद आ जाती है, और वो अपना प्रेजेंटेशन छोड़ के आपका ऑडियंस कहीं और थिंकिंग में चला जाता है। वो इंटेंशनली होता नहीं है, पर वो सबटली हो जाता है, कभी कभी अननोइंगली आदमी निकल जाता है दूसरी तरफ। तो आप अगर उसको
फिर से आपके प्रेजेंटेशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो मुझे लगता है सेक्शन सेपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑडियंस को रिकनेक्ट करने के लिए। आप आपके ऑडियंस को मौका दे रहे हो कि भाई ठीक है, मेरे सेक्शन नंबर 1 के कुछ मैसेजेस आपके शायद छूट गए हैं, पर अभी अगर आप मेरे साथ फ्रेश माइंड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि सेक्शन नंबर 1, मेरा मैसेज नंबर 1 मैंने क्लियर कर दिया है। नाउ आई एम नाउ स्टार्टिंग माय डेलिब्रेशंस ऑन माय मैसेज नंबर 2 ऑफ माय टुडेस प्रेजेंटेशन। तो ऑफ कोर्स आपका ऑडियंस फिर से आपके साथ कनेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेक्शन सेपरेटर यानी क्या, शायद ये स्लाइड आपको बता देगी। एज यू कैन सी, ये जो स्लाइड आपकी आंखों के सामने दिख रही है, आई कंसिडर इट एज अ सेक्शन सेपरेटर, क्योंकि मैं अभी टिप नंबर 2 पे हूँ। और यहाँ पे मैं डाल सकता था कि टिप नंबर 2 का टाइटल भी मैं यहाँ पे डाल सकता था, पर मैंने वो नहीं किया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई टिप नंबर 1 मेरी शेयर हो चुकी है। अगर आपका कुछ पार्ट मिस हो गया हो या आपको कुछ अचानक से याद आ गया हो, तो ठीक है ना, वो छूट गया आपका। पर अभी आप, मैं टिप नंबर 2 की डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ अभी। नाउ यू कैन कनेक्ट विथ मी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। So my tip number 2 is avoid using inbuilt templates. And what is inbuilt template? Inbuilt templates, and you just take a look at this particular slides. ये स्लाइड आपने शायद इससे पहले कहीं ना कहीं देखी होगी, और मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको। ये जो स्लाइड्स है ना, इनको हम इनबिल्ट टेम्पलेट्स कहते हैं। जो एमएस ऑफिस का जो पैकेज हमारे पास है, जिसमें डिजाइन नाम का एक मेन्यू है, वो मेन्यू में हम लोगों को ये टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। और आपने ये जो टेम्पलेट्स है, ये इससे पहले यूज किए होंगे और देखे भी होंगे। और ये जो है ना, ये जो टेम्पलेट आपकी आंखों के सामने अभी दिख रहे हैं, खास करके ये वाला जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, 3-4 टेम्पलेट्स, ये 2005-2007 में इंट्रोड्यूस किए गए थे एमएस ऑफिस ने। तो आपको 2005 में ये शायद बहुत यूनिक लग रहे होंगे, जैसे अगर बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त 2005 में, जब आपके ऑडियंस ने, आपने खुद ने ये पहली बार देखा, अच्छा लग रहा था। पर आज 2022 यानी लगभग 15-20 साल हो चुके हैं ये चीज को, कि आपका ऑडियंस ये देखते आ रहा है। और मालूम नहीं कितनी बार आपने ये कलर कॉम्बिनेशन, इसी प्रकार का फॉन्ट, ये सब मालूम नहीं कितनी बार देख चुका है। तो ऑफकोर्स इसमें का जो नयापन है ना, इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स शीन। इसमें ना कोई नई चीज नहीं रही है। और आपका ऑडियंस भी जब इस प्रकार के टेम्पलेट देखता है ना, एक ऐसा लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं देखा है। ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन ही कहीं पे सुना है। तो आपका ऑडियंस एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड से ही आपका लेक्चर सुनने के मूड में जा रहा है, तो उनको मौका क्यों देना ना। तो माय मैसेज टू यू इज कि डू अवे विद द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट्स, जिनको हम इनबिल्ट टेम्पलेट्स करें। कि देखिए, ये टेम्पलेट तो आपने मालूम है जिंदगी में कितनी बार देखा होगा और यूज भी किया होगा शायद। और ये जो नीला पट्टा है ना, आई डोंट नो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल। Out of every 10 presentation, I could see 4 to 5 presentations are made using this particular template only. And I wonder ki what makes it so special. People are in fancy with this particular presentation, and ये ठीक है 2005-2007 में ठीक लगता भी होगा, पर आज इसमें कोई जान नहीं है। और मैं तो, हद तो ये हो गई है कि जेरोक्स सेंटर्स या फिर किराना दुकान या फिर कोई आपकी लॉन्ड्री, इनके भी जो बोर्ड होते हैं नेम प्लेट होती है, वो भी इसी टेम्पलेट में आजकल दिखती है। तो बड़ा अचरज लगता है कि हमने तो ये, मुझे लगता है ये इस प्रकार के टेम्पलेट हमारे प्रेजेंटेशन में यूज नहीं करने चाहिए, अगर सही में आपको आपके प्रेजेंटेशन बेटर करने। मैं तो कहता हूँ कि इवन सिंपल व्हाइट कैनवास भी यूज करोगे ना, इससे बेटर तो आज वो इफेक्ट क्रिएट कर लेगा आपके लिए। एज यू कैन सी, ये सब टेम्पलेट्स हमने अनगिनत बार देखे हैं, सुने हैं, इसमें कोई चार्म नहीं है। और आपका ऑडियंस भी ये सब देख के पक चुका है, कितनी बार देखेंगे ना यही सब चीजें। तो मेरा मैसेज ये पूरा जो बास्केट है इनबिल्ट टेम्पलेट्स का, वी शुड डिस्कार्ड दिस टेम्पलेट, इसको डाल दीजिए डस्टबिन में। और रूल तो ये है जो मैं बोलता हूँ, द रूल इज, इफ योर इट इज योर प्रेजेंटेशन, देन इट मस्ट बी योर टेम्पलेट। आपका प्रेजेंटेशन है तो टेम्पलेट भी आप ही बनाएंगे ना, तो फिर उसमें एक जान पूछ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि मेरे हर एक स्लाइड में कुछ तो भी नयापन है, ऐसी स्लाइड जो आपने शायद इससे पहले नहीं देखी है। एंड दिस मेक्स माई स्लाइड स्पेशल, एंड यू मस्ट बी अप्रिशिएटिंग इट सबटली। आप दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये चीजें नोट हो रही है ना, कि ये स्लाइड्स इससे पहले तो नहीं देखी है। एंड दिस इज व्हाट इज मेकिंग इट सो स्पेशल। तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा कलाकारी तो की नहीं है ना, एक थोड़े से डायनामिक इमेजेस मैंने डाल दिया, और यही इंटरनेट से ही आए हैं ना। और नीचे जो दिख रहा है कलर का जो है, सॉरी वायलेट कलर का, मैंने ये इंसर्ट फंक्शन में जाके इंसर्ट किया है, और यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट टाइप कर लिया है। And it has taken only 30 odd seconds to prepare this particular slide to me.
but still you are appreciating, at least you are taking the cognizance of this particular slide. मेरा मैसेज ही यही है कि आपका आपका प्रेजेंटेशन में अगर आपका टेम्पलेट है और ये लेआउट किस तरीके से सजाना है पूरे इसका, ये अगर आप डिसाइड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके स्लाइड्स में जान फूक जाती है और ये चार लोगों से तो बेटर हो जाती है। स्टीव जॉब्स ने एक मैसेज दिया है कि नॉर्मल इज बोरिंग, थिंक डिफरेंट। मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ कि हर 100 में से 90 लोग तो नॉर्मल प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, और नॉर्मल क्या है मैं तो बार बार बता रहा हूँ कि किस तरीके से नहीं होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप चार लोगों से हटके कोई पांचवी चीज कर लेते हो ना, तो मुझे लगता है आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड बेटर लगना दिखना शुरू हो जाती है। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि ये पावरपॉइंट की ही स्लाइड है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने स्टीव जॉब का एक सिंपल सा गूगल का इमेज कॉपी पेस्ट किया, नॉर्मल इज बोरिंग थिंक डिफरेंट, या मैंने खुद टाइप किया है। और ये स्लाइड बनाने के लिए मुझे भी 1 मिनट के ऊपर नहीं लगा है, बट स्टिल आपको लग रहा है कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। सर तो मैसेज दे रहे हैं कि नॉर्मल इज बोरिंग, बट एट द सेम टाइम दिस स्लाइड इज लुकिंग गुड एज वेल। So this makes your PowerPoint slide special when you subtly start thinking about कि इसको हम लोग को क्रिएट कैसे करना है। दिस इज द लाउड मैसेज फॉर ट्राई टू डिफरेंशिएट। ये देखिए ये सब भीड़ है सफेद वालों की, और इसमें अगर आपको इफ यू विश टू स्टैंड टॉल like this, so of course this is only the pink one, otherwise rest of are all ordinary and we should try to achieve this one. Try to differentiate in some sense in terms of preparation of your slide। हल्के फुल्के चेंजेस भी कर लेते हो ना स्लाइड के प्रेजेंटेशन में, आपकी स्लाइड्स बेटर दिखना शुरू हो जाता है। देखिए हम सब जब पावर पॉइंट का पैकेज ओपन करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, तो हम सब लोग यहाँ पे आके रुकते हैं। सबके लिए मैंने भी जब ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन तैयार किया था, मैंने शुरुआत यही से की थी। दुनिया में जितने भी पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई जाती है उसमें जो भी बंदा ये तैयार कर रहा है वो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचता है। गेटिंग इट? अभी आप ये जो कैनवास सबके लिए कॉमन है, ये कैनवास के साथ आप क्या कर रहे हो, ये डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रेजेंटेशन ये ये यूनिक होने वाला है या ऑर्डिनरी होने वाला है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके साथ यहाँ पे जो फंक्शंस दिए हैं कि यहाँ पे पावर पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पे आप अपना टाइटल ऐड करो। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा ना, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। आप अलग हो जाते हो, क्योंकि बाकी 100 में से 90 लोग यहाँ पे टाइटल लिख रहे हैं। वो बोल रहे कि यहाँ पे आप सब टाइटल या फिर अपना नाम लिखिए, प्रेजेंटर यहाँ पे आप अपना नाम लिख रहे हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लिखना है यहाँ पे नाम, मैं मुझे ठीक यहीं पे नाम लिखना है। तो आप चार लोगों से बेटर हो जाना। मैं बात वही कर रहा हूँ कि आपको एमएस ऑफिस ने जो कुछ भी बताया है उसको अगर आप डिस्कार्ड कर देते हो कि आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मैंने कहाँ पे क्या चीज टाइप करनी चाहिए या कौन से फॉन्ट में टाइप करनी चाहिए, मैं ये मेरा प्रेजेंटेशन है तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी जाएगी, कौन से फॉन्ट में, कौन से फॉन्ट साइज में, तो आपका प्रेजेंटेशन शायद बेटर हो जाएगा। तो मैसेज ओवर हियर इज कि आप ये स्लाइड के साथ क्या करते हो, ये डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके टेम्पलेट्स अगर यूनिक हैं तो आपके स्लाइड्स को एक फ्रेश लुक आ जाता है। आप देख रहे हैं स्लाइड, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप इसको 30 सेकंड तक देखते रहिए, तो आप देखना पसंद करोगे इसको, तो इसमें फ्रेशनेस है, इनहेरेंट फ्रेशनेस है ये स्लाइड्स को। और देखिए एक बात तो ये है जो मुझे ओवर द पीरियड रियलाइज हुई है कि खास करके फिजिकल सेटअप में हम कोई सेशन एंगेज कर रहे हैं तो हमारे ऑडियंस के पास उस वक्त जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, 1 डेढ़ घंटे का प्रेजेंटेशन है आपका, उस वक्त आपका ऑडियंस जो हॉल में बैठा है उसके पास लिटरली कोई काम नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स आप जो दिखा रहे हो वो देखने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको दिखाना ही है ना, तो फिर अच्छी चीजें दिखाओ ना, तो वो शायद इंटरेस्ट लेके दिखेगा और देखते हो सुनेगा भी। दिस इज व्हाट यू कैन अचीव बाय क्रिएटिंग योर ओन टेम्पलेट्स। यानी ये स्लाइड का लेआउट क्या रहेगा ये अगर आप क्राफ्ट कर लेते हो, ये ट्रीटमेंट खुद डिसाइड करते हो, तो मुझे लगता है पावरपॉइंट की स्लाइड्स में जान आ जाती है, फ्रेश लुक आ जाता है, और ये फ्रेश चीजें सभी को देखना पसंद होता है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ creating great visuals in any PowerPoint presentations. We're on to tip number 3 now. So this is my message number 3. Try to create first positive impression by using relevant templates. देखिए आपने कैप्शन तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पर पावर पॉइंट के सेंस में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू कांट क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन विद सेकंड स्लाइड। Kidding me? I'm repeating it. You can't create first impression with second slide.
फर्स्ट इंप्रेशन पहली स्लाइड से ही बनता है, और इसलिए फर्स्ट स्लाइड जो है वो आपने अच्छे से डिजाइन करनी चाहिए, और वो भी रिलीवेंट टेम्पलेट्स यूज करके। तो पावर पॉइंट में जाना जाती है, फर्स्ट स्लाइड का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और इसका इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि फर्स्ट स्लाइड पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे ज्यादा देर तक लिंगर होती है। यानी आप एज ए रिसोर्स पर्सन कहीं किसी कॉलेज में गए हो लेक्चर देने के लिए, और आपको ऑफ कोर्स आप जब पावरपॉइंट स्लाइड्स प्ले करोगे ना, तो फर्स्ट स्लाइड से ही प्ले होगा, और आप वो प्ले करके रख देते हो, और मीनवाइल एक बफर टाइम जाता है जिसमें थोड़ा सा ऑडियंस सेटल डाउन होना, या फिर आपके ऑर्गेनाइजर्स माइक चेक कर रहे हैं, या फिर आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है 2 या 3 मिनट तक, और ये पूरे समय तक अगर कोई स्लाइड दिख रही है तो वो फर्स्ट स्लाइड है, और आपका ऑडियंस जो ऑलरेडी हॉल में बैठा है, सेट हो चुका है, आपका इंट्रोडक्शन चलते वक्त उसको क्या देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट स्लाइड। यानी क्या सबसे ज्यादा देर तक वो क्या देख रहा है, तो फर्स्ट स्लाइड। मुझे लगता है वहां पे यहाँ ये पर्टिकुलर टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारे ऑडियंस को एक अच्छे खासे मूड में लेके आए, कि आपको आज जो सुनने को मिल रहा है ना, वो मिलने वाला है, वो बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। तो ये सबटल मैसेज पास ऑन कैसे होगा, मुझे लगता है फर्स्ट स्लाइड के थ्रू। So this is the importance of creating very engaging and relevant first slide. So how to do this? We are on to it. तो ऑफ कोर्स आपके टॉपिक की जो थीम है, you need to relate the choice of your visuals and templates with the theme under consideration. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आइडियली फर्स्ट स्लाइड्स कैसे नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स ही है, मैंने तो ये बनाया नहीं है, और मैं चाह के भी इतने गंदे स्लाइड्स तो बना नहीं सकता हूँ, आदत सी बन चुकी है परफेक्शन को लेके। पर ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो मैंने इंटरनेट पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल डिस्कशन पर्पस के लिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, रादर मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये किसने बनाई है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। थीम अंडर कंसिडरेशन क्या है, तो एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ पे इतने बड़े लाउड अक्षरों में एक एरो भी दिया हुआ है और नेक्स्ट भी लिखा है। अगर ये नहीं लिखा होता तो चला होता, बिल्कुल चला होता। क्या नेक्स्ट अपने लिए लिखा है आपने, और ये एरो क्या इस तरफ आपने क्लिक किया तो ही नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, ऐसा कुछ इंडिकेट हो रहा है। ऑल सच आइटम्स आर कंसिडर्ड एज नॉन इसेंशियल आइटम्स, जो आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती। दूसरी एक चीज, आप देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कोर थीम दिख रही है, और टेम्पलेट क्या यूज किया है, तो ये डिजाइन वाला। ऐसा लगता है कोई शादी का इनविटेशन कार्ड है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई राजा दूसरे राजा को कुछ मैसेज पास ऑन कर रहा है लतीफे के फॉर्म में। तो ऑफ कोर्स आप जो टॉपिक डील कर रहे हो वो, और आपके विजुअल का चॉइस, ये मैच नहीं हो रहा है, और इसीलिए ये स्लाइड दिखने में भी ठीक लग रही होगी, पर ऑडियंस इज नॉट एबल टू रिलेट व्हाट इज गोइंग टू अनफोल्ड, यू नो। सो और कुछ देखते हैं। आप देखते हैं, ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल जिसमें बात हो रही है केस स्टडीज की, और दिखा क्या रहे, तो समंदर तो समंदर और केस स्टडी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कनेक्शन होगा। उसके बाद पोएटिक फॉर्म्स एंड जेनर्स, और आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में कुछ भी चटाई जैसा, एक मैट जैसा कुछ दिख रहा है, और इसका मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कनेक्शन होगा। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट को लेकर कुछ बात हो रही है, और यहाँ पे दिखा क्या रहे, तो डब्बे डब्बे वाली रांगोई, इसका और इसका मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कनेक्शन है। ये टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन पोजीशनिंग, इसको लेके बहुत अच्छे विजुअल्स आ सकते थे, बट आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों यूज किया गया है इस प्रकार का टेम्पलेट, जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस एंड स्ट्रेटेजी, यही चीज को आपके पास बेटर विजुअल्स, बेटर टेम्पलेट्स हो सकते थे। तो ये सिंपल सा इनबिल्ट टेम्पलेट यूज किया गया है, जो बहुत ही हैकनेड है। हैकनेड मींस ओवर यूज्ड, जिसको हम कहते हैं। इसकी वजह से कोई एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं हो सकता, एंड बिलीव मी दिस इज द फर्स्ट स्लाइड बॉस। एनोवा, मैंने ये रिसेंटली देखा था, रियल लाइफ का ही ये, और ये फ्रेंडशिप बैंड जैसा कुछ दिख रहा है, और आपको मालूम है एनोवा इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। एनोवा और फ्रेंडशिप बैंड, मुझे कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, और दैट टू ब्लैक, इतना ज्यादा ओवर यूज, वो भी फर्स्ट स्लाइड पे। ये भी मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया होगा। ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है। यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चनर डिजाइनिंग की, जो सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्वेश्चनर डिजाइन कैसे करते हैं वो बात हो रही है, और दिखा क्या रहा है, तो जंगल तो, और वो भी वाटर मार्क में। तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छा आइडिया है कि टॉपिक और आपका जो विजुअल्स का सिलेक्शन है, इट शुड गो इन सिंक ना, दोनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। एज यू कैन सी, ये भी रियल लाइफ एग्जांपल है। टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और दिखा क्या रहे हैं, तो टाइशा लगा के लोग कुछ गाने गा रहे हैं, और सही में ह्यूमन रिसोर्स में ऐसा होता है क्या? आई डोंट थिंक सो। अभी बात करते हैं कुछ अच्छे स्लाइड्स की, रिलीवेंट स्लाइड्स की रादर, ये शायद मेरे ही कुछ एग्जांपल्स हैं। मेरा एक कोर डोमेन है रिसर्च का, और मैंने जो कुछ
मेरी पहली स्लाइड्स मेरे टॉपिक्स को लेके बनाई है, वही जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ ए सिनॉप्सिस एज यू कैन से देखने में थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है ये। लिटरेचर रिव्यू का टॉपिक है और एज यू कैन से लिटरेचर रिव्यू इज रिलेटेड विद लाइब्रेरी, तो एज यू कैन से जंबो लाइब्रेरी इन द बैकग्राउंड। तो अच्छा लगता है, रिलेट हो जाता है ऑडियंस की जो भी है टॉपिक अंडर कंसिडरेशन, द इमेजेस आर गोइंग इन सिंक विद इट। देन आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग, इसके ऊपर भी मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ। तो एज यू कैन सी दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। अर्लियर आई यूज्ड टू प्रिपेयर दिस, अभी तो मेरे बहुत सारे मैंने इसको रिवाइज भी कर लिया और हर बार मैं नया कुछ तो भी करते रहता हूँ मेरे हर ही वर्कशॉप में। तो पहले जब मैं ये आपके सामने जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, उस वक्त मेरी पहली स्लाइड ये कुछ ऐसी रहा करती थी, टिप्स टू क्रिएट अमेजिंगली प्रोफेशनल पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस। और this is what I'm trying to achieve, the excitement. Audience is going to be excited by listening to my presentation, and this is what subtly I was trying to tell. और ये जो आप देख रहे हैं इंडेक्स, ये मेरी तरफ, तो ये स्मार्टली मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाया था और उसको थोड़ा सा टाइम लिया था मैंने, एक 7-8 मिनट मुझे लगे थे ये स्लाइड बनाने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिरर इमेजेस डाले हैं पार्ट पार्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी मैं काम करता हूँ, ये मेरी कुछ फर्स्ट स्लाइड्स है, सो विल नॉट डिस्कस मच अबाउट दिस। SLR के वर्कशॉप्स भी मैं लेता हूँ, मुझे भी लगता है ये एक रिलीवेंट स्लाइड है। क्वेश्चनर डिजाइनिंग को लेके मैंने ही मेरे वर्कशॉप्स होते रहते हैं, उसमें मेरा फर्स्ट स्लाइड लुक्स लाइक दिस, ये टिक मार्क एंड ऑल। अभी कुछ स्लाइड्स के मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरे एकेडमिक करियर में मेरे साथ जो स्टूडेंट्स के साथ कुछ टॉपिक्स को लेके मेरी चर्चा हुई थी और मैंने उनको जो सजेशंस दिए थे और इनकॉर्पोरेट किए थे हमने वो सजेशन, वो जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। देखिए अर्लियर जब मैं 2007 की बात है ये कि रिसर्च डिजाइन और सैंपल डिजाइन का टॉपिक जब मैं डील कर रहा था, तो उस वक्त मैंने जो बनाया था मेरा पावर पॉइंट का स्लाइड वो इस तरीके का था। तो 2007 में ये नीला पट्टा बहुत ही नया था, तो उस वक्त शायद ये मुझे बेटर लगा था। पर ओवर द पीरियड आई स्टार्टेड लर्निंग, और इसमें से बहुत सारे मैसेजेस तो मैं आपको दे रहा हूँ ये थ्रू ऑब्जर्वेशन, और पढ़ा भी मैंने बहुत सारा इसके ऊपर, अच्छा खासा स्टडी किया है मैंने पावर पॉइंट एज ए स्किल करके। स्टीव जॉब ने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ थोड़ी देर में। पर इसी स्लाइड को मैं सब्सिक्वेंटली फिर ऐसे तैयार किया था। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी मैंने बहुत सारा काम किया है। तो अर्लियर जब मैंने पहली बार फार्मास्यूटिकल रिसर्च पे लेक्चर लिया था, तो मैंने ये टेम्पलेट यूज किया था। ओवर द पीरियड देन अभी जो मैं ले रहा हूँ सेशंस, वो इस तरीके के मेरी स्लाइड्स होती हैं एज यू कैन सी, जो थोड़ी सी रिलीवेंट भी लगती है। एक स्टूडेंट में मेरे पास आया था, उसका टॉपिक ये था फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, और ये स्लाइड उसने यूज की थी। मैंने डेलिबरेटली वो XYZ यहाँ पे लिखा है, वो स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा है। फिर मैंने उसको एक नई स्लाइड मैंने खुद तैयार करके दी थी उसको, एंड इट वाज लाइक दिस। ये भी बात बहुत पुरानी है, 12-13 की बात होगी ये, जिस वक्त मैंने ये स्लाइड उसको बना के दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया की बात हो रही है, तो फार्म भी दिख रहा है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी दिख रही है, और इंडिया भी दिख रहा है, इंडियन फेसेस एज यू कैन से, और बैल भी इंडियन दिख रहे हैं दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट बस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब मैंने 2006-2007 में पहला लेक्चर लिया था, उस वक्त ये स्लाइड थी, और अभी ओवर द पीरियड ये भी 2014 में मैंने बनाई थी। अभी 2022 में तो कुछ और ही यूज कर रहा हूँ मैं। चैलेंजेस फॉर द यूथ टुडे, ये हमारे क्लासरूम प्रेजेंटेशंस थे। एक स्टूडेंट इसके ऊपर प्रेजेंटेशन कर रहा था, उसने ये बना के लाया था उसको बोला भी यार कि ये दिखने में तो अच्छी दिख रही है तितलियां वगैरह, पर यार व्हाट इज द रिलीवेंस आपका टॉपिक, और ये तो क्या यूथ को ये तितलियां पकड़ने का ही एक चैलेंज रह गया है क्या दिस वाज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन। सब्सिक्वेंटली मैंने फिर उसको डिजाइन करके दी थी 2-3 स्लाइड्स जो आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं। चैलेंजेस टू द यूथ इन इंडिया, यूथ दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, और चैलेंजेस यानी थोड़ा सा टेंस भी लग रहा है यूथ आज का। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर, एज यू कैन सी द चैलेंजेस टू द यूथ इन इंडिया, और एक स्लाइड मैंने उसको बनाई थी, बना के दी थी। मतलब ये तीनों चारों में से आपको जो यूज करनी है वो करिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू द यूथ इन इंडिया टुडे, तो ये स्लाइड मैंने उसको यूज बना के दी थी। और ये भी एक बना के दी थी कि टुडेज यूथ इज फ्रस्ट्रेटेड, तो ये भी मैंने खुद डिजाइन करके दी थी उसको, पुरानी बात है ये भी एक मेरी स्लाइड पहले रहा करती थी, सेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सब्सिक्वेंटली फिर मैंने इसको ऐसे इस तरीके से बनाना शुरू किया, मेजरमेंट एंड स्केलिंग। और ये मेरी पहली स्लाइड थी 2006-2007 में, फिर सब्सिक्वेंटली 2013-14 में मैंने ये स्लाइड बनाई थी, और ये स्लाइड के साथ यादें बहुत ज्यादा है, अभी भी जुड़ी है। लगभग 3-3.5 घंटे लग गए थे मुझे उस वक्त जब मैं पावर पॉइंट प्रोफेशनली कैसे तैयार करते हैं वो सब सीख रहा था, लर्निंग प्रोसेस में था, तो मुझे याद है 3-3.5 घंटे लग गए थे मुझे ये स्लाइड बनाने के लिए।
आपको भी लग रहा होगा इस तरह ये स्लाइड में क्या है, ऐसा 3 साढ़े 3 घंटे लगने लायक, पर ये इमेजेस जो मैंने गूगल से ली थी ये इस डायमेंशन में नहीं थी। डायमेंशन कुछ और थे। इसमें मैंने पेंट ब्रश में जाके बहुत सारी कलाकारी करके ये जो शेडोज वगैरह दिख रही है ना, ये क्रिएट करने में मुझे बहुत टाइम लगा था उस वक्त, पार्ट अपार्ट। ये भी एक हमारे स्टूडेंट ने किया था, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स ऑफ एमबीएज इन इंडिया, तो मैंने कुछ इस तरीके से उसको बना के दिया था, याद है मुझे अभी भी। Then graphical presentation with MS Excel, as you can see, this is the more contemporary kind of thing which I have prepared subsequently. सैम्पलिंग ये बहुत पहले मैंने बनाया था, अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए ये स्लाइड को, इसमें कुछ एनिमेशंस का यूज किया है मैंने। तो ये बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, 15 से 20 मिनट मुझे लगे थे ये एनिमेशन से ब्लैक एंड व्हाइट करना, और फिर वो लिंगे को कलरफुल करना और वो ई एडिशनली ऐड करना सैम्पलिंग में। एनिमेशंस यूज किए गए 3 से 4 एनिमेशन है इसमें। इसमें एक क्या बोलते हैं, ग्रे कलर फंक्शंस होते हैं, वो भी यूज किए गए हैं। टाइम लगा था मुझे ये बनाने के लिए। और ये आइडिया जो थी ना डॉक्टर आशीष लिंगे, वो सैम्पलिंग में LING, यहाँ तक तो आ ही रहा है, सैम्पलिंग मेरा टॉपिक है। तो मैं अमरावती में एक लेक्चर ले रहा था, रिफ्रेशर कोर्स ही था इंसिडेंटली, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, फिजिकल सेटअप में था। और वो लेक्चर लेके रात को मैं घर आया था नागपुर, और मुझे रात को 10 साढ़े 10 बजे एक फोन आया। तो उसने मुझे पहले माफी मांगी, जो भी पार्टिसिपेंट थे, कि सर सॉरी मैं आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आप जस्ट पहुंचे होंगे नागपुर। पर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपको फोन किया। और उन्होंने बताया कि सर आपका आज का जो टॉपिक था सैम्पलिंग, उसके ऊपर आपने जो डेलिब्रेशंस किए मुझे बहुत पसंद आए। और सर मैंने आपका नंबर जो है वो डॉक्टर आशीष सैम्पलिंगे नाम से सेव किया है, और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। तो मुझे आइडिया मिल गया, अरे यार बोला ये तो अच्छी चीज है, सैम्पलिंग में लिंक LING तक तो आ ही रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सैम्पलिंग का टॉपिक जब भी डिस्कस करूंगा तो उसमें फिर इस तरीके के एनिमेशंस यूज करूँ। आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो मेरे ख्याल से 12:30 बज रहे हैं, तो पहला सेशन हमारा खत्म हो रहा है। और नेक्स्ट टिप जो है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। बाकी बची हुई लगभग 10 से 11 टिप्स है हमारी, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हम लोग अभी अभी के सेशन को लेके कुछ आपको डाउट्स है? देखिए मुझे मालूम था कि इसके बाद की स्लाइड टिप नंबर 4 है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉन्फिडेंस पॉज। तो सर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछिए। हाँ सर। सर सर आपने जैसे बताया प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास तीन चीजें की जरूरत है, एक स्ट्रक्चर, डिजाइन और डिलीवरी, राइट तीनों सर। चाहिए। तो ये तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है या इनका कुछ अलग अलग परसेंटेज है? नहीं नहीं, परसेंटेज नहीं है सर, ये तो आपको आपके डिस्क्रिप्शन से क्रिएट करना है ना, मीन्स दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स। It is not about the strength or intensity or magnitude of usage of all these things, but these three things you need to infuse into your presentations to make it effective. Means your presentation should be well structured. It should be visually great, and at the same time, your oratorship, you can say, the way you are presenting. So it Right. equally matters, sir. और सेकंड थिंग्स आपने ये बताई है, मुझे ये पता करना था कि भी तीनों में से हम ज्यादा किसको तवज्जो दे या ज्यादा किसके ऊपर इम्पैक्ट करे, लेकिन आप बता रहे तीनों भी अपने जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए सर, मैं ये ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आपने सब्सटेंस पे बहुत काम किया है, कंटेंट्स पे बहुत अच्छा काम किया है, पर वो कंटेंट्स आपने ठीक से परोसे नहीं है, स्लाइड्स अच्छी नहीं बनाई है, तो वो कंटेंट, बहुत अच्छे कंटेंट भी ऑर्डिनरी लगना शुरू हो जाएगा सर। और अच्छा तीसरी चीज, आपने कंटेंट बहुत अच्छे तैयार किए हैं, विजुअल्स भी बहुत अच्छे तैयार किए हैं, पर आप ओरेटरशिप में वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। आपका उस दिन कॉन्फिडेंस है, या फिर आप कुछ चीजें भूल भूल जा रहे हो, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक से नहीं है, आप नर्वस हो रहे हो। तो उस वक्त बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी फिर अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा ना, जब तक आपने घर में जो होमवर्क है बहुत अच्छा तगड़ा किया है, बट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन और डिलीवरी, तो वो भी अच्छा। तो एक इक्वली इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ना सर प्रेजेंटेशन का। राइट सर। सर दूसरी चीज, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया सारी चीजें, तो इसमें से ये भी पता चल रहा है कि हर एक स्लाइड जो कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से उसके पिक्चर्स या डिजाइन हमें करना चाहिए, ऐसा एक मैसेज आपका है, मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कि हर एक स्लाइड जैसा डिफरेंट और वो कंटेंट के हिसाब से उसको डेकोरेट करना है। राइट सर। राइट कैसे? सर। राइट और सर। और तीसरी बात मैं जो स्टार्टिंग में पूछा था, जैसे आपने भी बोला कि भी नैक का प्रेजेंटेशन है या कॉलेज का प्रेजेंटेशन है जिसमें हम हेडर फुटर लगाते हैं, वो हम्म। लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं कि भी डिफरेंट भी रहे तो चलेगा।
नहीं, मैंने ये कहा था उसमें कि एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है और वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप जो एलिमेंट्स बोल रहे हो, आपके कॉलेज का नाम या डिपार्टमेंट का नाम या आपका खुद का नाम या फिर Yes. आपके टॉपिक का टाइटल, ये अगर आपको लगता है कि रिलीवेंट है उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, तो बिल्कुल ये इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। पर अगर वो चीजें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है, जैसे रूटीन क्लासरूम प्रेजेंटेशन से या फिर आप किसी गेस्ट लेक्चर के लिए गए हैं, तो उस वक्त ये चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं। देखिए सर, ये तो लोग जब पूछना शुरू कर देंगे कि सर आए थे, बहुत अच्छा पढ़ाया यार, कौन से कॉलेज से है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फीडबैक सर। लोग आपके बारे में जानना शुरू करेंगे तो वो अपने आप वो जानकारी निकालेंगे सर। हम क्यों हर स्लाइड में बताएंगे कि मैं इस कॉलेज को बिलोंग करता हूँ। Yes, sir. तो ये नॉन इसेंशियल आइटम्स कहते हैं इसको। और ये जो अभी भी टिप्स है, 10-12 टिप्स में शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगभग एक 25 से टिप्स 30 टिप्स है मेरे पास, पर इंसिडेंटली थोड़ा टाइम लगता है। आप भी देख रहे हैं कि मैं 1.5 घंटे से बात कर रहा हूँ, सिर्फ Yes, 3 sir. टिप्स में शेयर कर पाया हूँ। ये चीजें हैं सर, कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने लायक चीजें है ये, और टाइम लगता है इसको थोड़ा सा, पर Okay, ठीक है, thank फिर भी you. 3 Thank you. घंटे सफिशिएंट टाइम है और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में भी। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. सर ब्रेक घ्यायचा. हो मॅडम, ओके सर, मी आता 12:40 मीटिंग एंड झाले. करते. हा, आपण 1:05 पर्यंत वगैरे सुरू करूया. ठीक है ना मैडम. चलिए पार्टिसिपेंट्स, आप ज्वाइन करिए शार्प 1 बजे. वी विल स्टार्ट द सेशन आफ्टर लंच ब्रेक. Okay, madam. Okay. ओके, Thank you. थैंक यू.